So, hi Shivam, please introduce yourself. Wait 1 second. Can we do it at the top? See if this is better. Yup. Oh, I see. I didn't use the volume button here in this one. Wow. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना होस्ट नीतीश। तो आज के हमारे गेस्ट हैं शिवम। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने यूएस में मास्टर्स एरिज़ोना स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से करी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, कितना डिफरेंट कल्चर है और भी डिफरेंट एक्सपेक्ट के बारे में कि लाइक साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसा है, एआई कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। So, hi Shivam, please introduce yourself. Hi, I'm Shivam, and I'm currently working as a security engineer at JP Morgan Chase. I have been working in the software industry for around 10 years now in different capacities, be it internship through companies like Amazon or even into healthcare companies like Glitch Tracking in the past, and one of the India's of leading furniture e-commerce giant, which was Urban Ladder. So through all these internships and my experience as a full-time engineer here, I have honed a couple of skills which make me relevant in this industry today. And that has also made me take a jump into this industry, which is specific to cybersecurity. And that's what I am doing in my current role today. And apart from that, I am a creative person in general, and I really like to challenge myself to into new situations and take up any new problem space and try to solutionize it. That's something very personal, like what I really enjoy doing in my pastime as well and in the company as well. So that's a brief introduction. So, how did you started in this industry? Like interest becoming started in cyber security? Right. So I think that's ये काफ़ी अच्छा सवाल है because it dates back to the time when I was doing my undergrad from India, and I think the credit goes to our professor because she made sure that we understand these skills or these terminologies in a very easier way. So just for an example, right? वो हमें हमेशा एक घर का एग्जाम्पल देके कि लेट्स इमेजिन कि एक घर है एंड हाउ विल पीपल ब्रेक इनटू द हाउस, तो वो एग्जांपल लेके वी ऑलमोस्ट अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट, related to web security or cryptographic solutions. That was a very nice way of familiarizing ourselves with the industry in general and the tools and techniques what we use in cybersecurity, right? तो आई थिंक वो अंडरग्रेड में एक जर्नी स्टार्ट हुआ था जबकि आर कॉलेज हैड एन इलेक्टिव which I took along with other of my friends, and the basic interest जब तब डेवलप हुआ जब हमने प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया। तो लेट्स से हनी पॉट्स करके एक टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस था उस टाइम पे, वेयर यू वुड बेसिकली बिल्ड अ डेकॉय सिस्टम जहाँ पे अटैकर को पता नहीं है कि दिस सिस्टम इज डिप्लॉयड on the other hand, and they are fooled into that particular system, and that ways companies or organizations can identify the attacking pattern कि कैसे कैसे अटैक्स होते हैं in the industry, right? So I think that was the very first hands-on exposure या hands-on experience कह लो, where I got used to working on something which the organizations are working on. And similarly we got enough opportunity to build on top of that, जैसे कि Medusa करके tool है एक, वो हमने use किया, and I think that time there was a trend to use Kali Linux a lot to understand how to sort of replicate a virus or create your own virus in specific, right? तो काफ़ी वो चीज़ें इनिशियली हुई ड्यूरिंग अंडरग्रेड, एंड दैट्स वेयर माय इंटरेस्ट स्टार्टेड. So I was very keen in knowing what next and how these let's say attackers, or let's say even from the defense perspective, how do we ensure कि हमारे systems जो हैं they are very secure. तो हमेशा से वो thought process तो रहता ही था. And through my journey, I think that one thing remained constant is that curiosity to understand how can a malicious actor intrude a system, right? Because I have worked as a software engineer in the past, and वहाँ पे तो definitely we have to take care of these things where we threat model our application and we ensure API security as well. So I think
in general, security is not an afterthought, which I tell to a lot of people now, and it has to be ingrained within you right from the get go of it, right? So it goes back to saying कि ये fundamentals कुछ हैं computer science के, which I really feel everyone should invest into understanding these basics, and which eventually lead you into, you know, getting into this space and try to से कि यार ये अच्छी चीज़ है एक्चुअली, राइट? तो you can only appreciate it when you understand these nuances, these fundamentals of this field. And I would really recommend everybody actually who is doing right now, who they are pursuing undergrad in computer science, to understand these small concepts, because later on these really help you appreciate the field, right? तो ये जर्नी वहाँ शुरू हुई, एंड इवन मास्टर्स में व्हेन आई डिड माय मास्टर्स, तब भी ये एक कोर्स था मेरा कंप्यूटर सिक्योरिटी का, and that was very hands on. Probably we can talk more about it in the later segment of the podcast, but I think the point is कि ये एक बिल्कुल चल रहा था साथ साथ में जर्नी, राइट? ये ऐसा नहीं हुआ एट नो पॉइंट इन टाइम कि वो छूट गई चीज़ कहीं पे. So, couple of things like this really influenced me to step into this market and understand what are the problem space. First of all, what problem space are we into, and what are the problems we are trying to solve here, right? And yeah, I think it's going really good, and I am now able to at least appreciate कि cybersecurity is not just one term. It is a broader umbrella of so many things under it. And I think mostly we'll talk about that in the upcoming. So, what factor did you consider while choosing your undergrad? Is Right. any case of cybersecurity mindset is there to choose, like we need to choose cybersecurity colleges undergrad students? Right. To be honest with you, I never had that mindset कि मुझे cyber security में ही जाना है from the get go of it, right? Because I think मेरा undergrad start हुआ था in 2012, and that time I think the grind is similar for all engineering students कि आपको IIT, IEEE, you write all those examinations. And but मेरे साथ एक चीज़ definitely था कि I really wanted to not like drop off any year and not waste time in acing any particular examination, right? Because you get enough time to coach yourself maybe in your 10th, 11th, 12th grade to do your best to your abilities, right? मेरा वो philosophy था उस time पे. तो whatever comes, I would want to basically choose the best out of it, right? So that's where I selected this university called PESIT. That's one of the very famous institutes in Bangalore, and their curriculum is amazing. And I really appreciate कि मैंने उस time पे वो choice किया था, because that helped me understand a lot of different perspectives of this field, right? Not just cybersecurity, I'm saying computer science in general. And just small examples, if I can take, right? Like the kind of coursework which we had there. So let's say you have your normal जो basic fundamentals आपको पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में, जैसे कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, डेटाबेसेस हो गए, नेटवर्क्स हो गए. Now, along with that, there was a concept of something called as domain centers, and some kind of startups were there as well, right? So those were primarily इलेक्टिव focused. लाइक इलेक्टिव्स जैसे कॉलेज में सेलेक्ट कर सकते हो आप. I would say elective एक चीज़ है, ये special projects थे. This was on top of your normal electives, because electives actually started in third year, थर्ड I ईयर think. Yeah, correct. तो ये even like right from, so let's say first year आपको जो engineering का रहता है, that's very वो common, नॉर्मल right? नॉर्मल रहता है. Exactly. You study physics, chemistry, electrical, electronics, everything is there. Engineering drawing as well, right? बट जब सेकेंड ईयर आप आते हो तो योर जो बेसिक आपका जो भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपने लिया है, आपका वो स्टडी ज़्यादा फोकस्ड रहता है उस टाइम से. सो व्हाट दे इंट्रोड्यूस्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, जहाँ पे लेट्स से आई वाज एसोसिएटेड विद अ डोमेन कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा, and that helped me actually explore a lot of these things, right? Like let's say we worked in collaboration with companies, and we also worked in collaboration with some research professionals from across in universities in the world. So let's say हमारे जो professors वहाँ पे थे, they had connections to companies or different universities in the world, right? In the US as well at that time, right? जब मैं इंडिया में था. So it made us
in a way exposed to those technologies, the cutting edge technologies as well, and work in some of those spaces right from the get go of things. Matlab, imagine cloud was still evolving at that point in time. And I still remember we would deploy OpenStack करके एक cloud instance आता था उस time पे. You deploy that on bare machine, which is like server, आप कह सकते हो. And using that setup, we would then kind of do some analysis on some database, ki how it is performing on cloud, right? What we set up in our lab. So a lot of hands-on experience हमें वहाँ से start हुआ है through those domain centers. And just to add, like कुछ कुछ nostalgia अभी भी आता है कि like how you see Stack Overflow so helpful today. I still remember there were errors which we would find out like while we are executing a program. और वो आपको एरर कहीं पे नहीं मिलेगा Stack Overflow पे. आप कहीं पे भी इंटरनेट पे डाल दो, आपको वो एरर नहीं मिलेगा. And that is the real learning. Like how do you get past that error? How do you resolve those errors and keep going further to what your project is? I think that was the real learning when it began for all of us. And we really appreciate that now कि we were able to do all those things back in time, right? तो काइंड ऑफ दैट एंड ये सब मुझे इंसाइट्स थोड़े बहुत पता चले थे व्हेन ड्यूरिंग जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है हर जगह से. तो यू ऑल्सो गेट टू गो टू दैट प्लेस. लेट्स से आप एग्ज़ाम लिखने के लिए कहीं जा रहे हो, तो उस दौरान मैंने ये भी सोचा कि लेट्स जस्ट talk to few people who are in this campus maybe to get first hand information about these things, right? And that really helped me decide ki which college for undergrad I should go for. So a lot of these factors actually influenced my decision. But to be honest, cybersecurity was never, the mindset right from the beginning. Let's say 12th में तो मुझे पता भी नहीं था कि that word existed. Because मेरा जो courses भी थे, I had never taken like C++ programming languages back in that time, right? तो ज़्यादा focus तो PCM पे ही रहता था, like physics, chemistry and mathematics. So yeah, I think that's how the journey I would say started when I was entered, like when I entered the college. And college का तो मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे choice हुआ था. मुझे लगता है कि जो आपका क्या कहते हैं, ये जो क्लाउड वाला अलग डोमेन जो कॉलेज ने इंट्रोड्यूस Right, किया, मुझे लग रहा है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी right. उसके साथ अलाइन रहने के लिए कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया था, तब आपका That's इंटरेस्ट true. चालू हुआ. दैट्स ट्रू. हाँ हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल बात सही है. बिकॉज जब आप इन चीज़ों की बात करते हो, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी इज़ नॉट एन आफ्टर थॉट, राइट? तो वो साथ साथ में आपको बताते जाएंगे कि इसके लिए भी आपको एक सिक्योर क्लाउड की ज़रूरत है, राइट? तो वो चीज़ें हमें फंडामेंटली सिखाई जाती थी कि ऑलवेज थिंक अबाउट दीज थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो यू वुड नॉट वांट एनी ऑफ द पोर्ट्स टू रिमेन अनअटेंडेड, राइट? अ वेरी सिंपल थिंग. तो ये सब चीज़ें हमें काफ़ी समझाया गया था उस टाइम पे भी. एंड जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, जैसे बिग डेटा पे हमने प्रोजेक्ट्स किए एंड वी क्रिएटेड सम कपल ऑफ एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो या कोई वेब एप्लीकेशन हो या फिर मशीन लर्निंग मॉडल हो. तो a lot of these things had to do with security from time to time, right? वो एंगल हमेशा से था उसमें. तो तो बट या मतलब एज यू कोई मेंशन, स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी डोमेन पे आपने उस कॉलेज टाइम पे वर्क नहीं किया, जैसे हाँ आपने उस बोला. करेक्ट, हम्म. उस सेंटर में नहीं किया. बट आई वुड से जो मेरा इलेक्टिव था दैट गेव मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन हनी पॉट्स which was the decoying system which was used back वहाँ in से time. थोड़ा क्यूरियोसिटी आपकी Yes, जागी. correct, correct, correct. सो आफ्टर दैट मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे रहे, आपने प्लेसमेंट कहाँ पे ली, कोर Hmm. सिक्योरिटी डोमेन में ली कि नॉर्मल सीएस जैसे पर्सन्स लेते हैं? राइट, तो मेरा एक्चुअली हमारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट था वो आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम 7th सेमेस्टर. एंड कंपनीज डू विजिट कॉलेजेस, और कुछ ऐसा एक रूल था कि देर आर सम ब्रैकेट्स लाइक Tier 1, Tier 2, Tier 3 कंपनीज. तो majority of the Tier 1 companies they want to come day zero पे, and they want to hire people at from the get go of things. जब placement announce हुए किसी कॉलेज में, तो वो पहली कंपनी आनी चाहिए, ऐसा उनका हमेशा रहता है, राइट? वो फाइट रहता है कि कब कौन सी कंपनी आएगी. तो एक ऐसा एक रूल था कि यू कैन नॉट सिट फॉर अदर कंपनीज वंस यू गेट लेट्स से अ Tier 1 जॉब. तो यू कांट गो फॉर Tier 2, Tier 3 एज वेल. तो आई थिंक उस टाइम पे भी मेरा फोकस है साइबर सिक्योरिटी में था नहीं, क्योंकि वी वर नॉट वेरी एक्सपोज टू कि यार सिक्योरिटी जॉब्स कौन कौन सी होती हैं या किस तरीके की होती हैं. जानते वो नहीं थे ज़्यादा, कॉन्सेप्ट बस था नहीं. स्टार्टिंग में बस एग्जैक्टली, जॉब मिल जाए वही एक कन्फ्यूजन था. एग्जैक्टली,
Exactly, true. And I think most of us have that, at least in undergrad, right? Because I feel अगर आप internships भी कर लो, अगर आप जो भी देख लो, majority internships जो आपको मिलेंगी वो security तो में तो नहीं होंगी, वो software engineering profile पे ही होगी, right? And that is something which even like that, right from startups to established companies या फिर consultancies हो गई for that matter, I think all of them hire in mass software engineers. तो वो एक चीज़ था हमेशा कि मतलब व्हेन वी लुक्ड एट द जॉब मार्केट वी जस्ट सॉ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज द बेसिक पिलर, एंड मे बी उसके बाद लेटरल मूवमेंट हो या कुछ हो ऐसा कि पीपल वुड शिफ्ट गियर्स एंड देन मूव इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, बट ऑल्सो आई फील थिंग्स हैव चेंज नाउ। मतलब ये बात मैं 10 साल पहले की कर रहा हूँ, राइट, या मे बी 8 साल पहले की कर रहा हूँ। तो अब things are changing because now universities are also introducing the concept of major minor. तो let's say अगर आपका majors कंप्यूटर साइंस में है तो आपका माइनर क्या पता किसी और सब्जेक्ट में वेरी फोकस्ड स्ट्रीम हो सकती है, लाइक डेटा साइंस हो गया या साइबर सिक्योरिटी हो गया। दैट्स समथिंग विच पीपल आर डूइंग नाउ एंड दे आर कंसिडरिंग दिस एज वेल। लाइक अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स देखो तो लोगों को स्पेसिफिक स्ट्रीम मिलता है, लाइक लेट्स से एआई या साइबर सिक्योरिटी, right? So but even in undergrad also, so they things are changing, I think, because there has been a shift in the paradigm for sure, and I think it's so good, right? क्योंकि अब अगर उस level पे लोग exposed हो रहे हैं to these different kind of roles, I think that's really good for them to pursue something which they really are interested in at right from the beginning of the stage. सो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर करें, लाइक कैसे आपका पहला प्लेसमेंट हुआ, वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? Absolutely. So the first interview experience actually dates back to 2014, I think, around that time. That's when my I got my first internship, and I think it was with Oracle at that time. And mostly they had focused on my projects which I had done in the past, and questions were just revolving around the kind of interest I have in general. जैसे let's say I was interested in data science या web development, तो उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, वेयर आई कुड पिक अप एग्जांपल्स एंड show them the specifications of how I implemented this particular module in my project. So that was my first interview experience ever. And but apart from that, I would say the real interview experience was in the seventh semester, where there were a couple of rounds. But the idea is there is a filter which they have a first round, jahan pe they interview everybody. There's a generic exam which people write, and based on the cutoff which is announced, uske hisab se they will have selected some maybe top 50 or top 100, and उनके साथ आगे जाके इंटरव्यू होता है। तो हमारे साथ ये हुआ था कि this company called Urban Ladder had come in for interview, and so they had selected some folks from our university and from other universities in Bangalore, and there was one day which they selected कि यहाँ पे आके सब लोग एक साथ फिर interview देंगे, the second round of the interview. And the second round of the interview was focused again on some coding problems, where 101 एक interviewer आपके साथ एक coding problem पूछता है, and you get to answer कि how do you solve that problem, and focus is mostly on the time efficiency and कि how do you optimize the program further, right? जो आप generally होता है lead code style coding basically in a way. And then eventually the third round there, once you let's say कि उसके बाद कट ऑफ फिर से वो अनाउंस करते हैं कि इतने स्टूडेंट्स ने कट ऑफ किया है क्लियर, एंड देन दे गेट इनटू द थर्ड राउंड, एंड थर्ड राउंड में इट वाज मोस्टली ऑन डिज़ाइन। अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, एंड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, राइट? And like think about computation power, think about how would you store such things. So स्टोरेज कंप्यूटेशन काफ़ी वो जो फंडामेंटल्स आप कह लो फिर से सी एस के, इट वॉज टचिंग ऑल दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन, राइट? So yeah, I think that was really interesting because that was my first ever interview exposure with a panel of distinguished people who were in the industry from so many years, right? And I think the interaction was really amazing because that day I understood
the real act of interviewing. It is not grilling. It is not just कि आपको एक question दिया गया और आप grill कर रहे हो एक इंसान को. That's not how it is, because at the end of the day, you won't know everything under the sun, right? So they made sure कि they are asking me things which I know to the percentage which is acceptable, sort of. And a lot of questions, एक Q&A format एक generate हो जाता है, like when you start answering questions, right? एक खुद ही एक pointers मिल जाते हैं कि next question क्या होगा for the interviewer. So that really helped. And uske baad, I think that's where they announced कि a couple of us were selected as interns, and we got to intern at Urban Ladder in January time frame. I think it was in our 8th semester, and post which we were also given a pre-placement offer based on the kind of work which we did during the internship. So वहाँ से मुझे PPO मिला, and I worked for the company for 2 years, where I also grew up as a software engineer too. And later on, I decided to move for my master's in US. And but तब तक का जो journey था, that was really really exciting, because it was like a startup. It was 4 years old when we joined, एंड काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला मुझे उसमें. आई वुड से अ ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज. जैसे एक बहुत ही कॉन्सेप्ट चलता है आजकल, ब्रेड्थ और डेप्थ ऑफ सर्विस का. तो वहाँ क्या था कि बिकॉज यू आर वर्किंग विद डिफरेंट बिजनेस पिलर्स, राइट? I तो guess वर्किंग, T form. right, correct. So there you get to work with different business verticals, like right from order management to payments to, अगर payments की बात हो तो finance team definitely. तो kind of वो सारी चीज़ें थी. फिर delivery management एक service था जहाँ पे आपको associate से भी बात करने को मिलता है, right? तो काफ़ी उस scale पे हमने बात की थी. And the projects were also on that level, and it was amazing to work for that organization and have that foundation, because मेरे को लगता है कि मेरा जो foundational जो build हुआ है वो वहीं से हुआ है, right? Working with amazing people and on really great projects. So that has shaped me, or that has honed my skills over the period of time. And one thing which has stayed same is my ability to work on cloud. तो वो चीज़ एक हमेशा रहा. इसीलिए अगर आप आज भी देखते हो तो मैं सिक्योरिटी में हूँ. आई एम डूइंग क्लाउड सिक्योरिटी बिकॉज एटलीस्ट क्लाउड was the very first thing जिस पे मैंने काम किया था, and that has stayed with me till now, right? So that association I still find going back in time. ओके, सो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसी रहती है, और इन कैंपस लोगों को कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए आजकल? या लोग Right. मोर फोकस रहते हैं कि 100% गारंटी प्लेसमेंट मिल जाएगी? तो किस किस ओरिएंटेशन से, क्या किस माइंडसेट से प्लेसमेंट की तरफ इंसान को अप्रोच करना चाहिए? Oh, लाइक this एज is अ a very फ्रेशर good तो, एज अ question. फ्रेशर्स तो Hmm. उसके लिए सबसे ज़्यादा इजी है कि कॉलेज में कंपनी आ रही हो Right. और वो वहाँ पे अपना कर रहा है, बट उसको रियल वर्थ वहाँ पे नहीं मिलती. लाइक उसको जिस डोमेन में जाना है वो नहीं मिलता, जिस प्राइस पॉइंट पे Correct. जाना होता है वो नहीं मिलता है. तो आप क्या, इसका Correct. क्या ओपिनियन है? नहीं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज काफ़ी लोग ये पूछते हैं ये चीज़, राइट? बट मेरे अपने एक्सपीरियंस में डिपेंड ऑन द कॉलेज एज वेल, राइट? कि जैसे अगर आपका कॉलेज या इवन लोकेशन फॉर दैट मैटर, आई थिंक ये एक बहुत ही सटल फैक्टर्स हैं विच इम्पैक्ट योर चॉइसेस. बिकॉज लेट्स से अगर आपका कॉलेज बैंगलोर में है, I'm giving a very vague example here, but just try to relate to it, right? Because I think relation is नहीं नहीं, important, ये कॉलेज का लोकेशन भी मैटर कर रहा है कि right? आप बैंगलोर जैसी सिटी में जहाँ पे खूब सारी Right. कंपनीज हैं, तो वो आपके लिए इजी भी रहता है ऑफ कैंपस Exactly. अप्रोच करना. Exactly. So अगर आप इसके बारे में सोचेंगे ना, फ्रॉम एन एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गो इनटू दिस. कि अगर आपको एक एम्प्लॉय मिल रहा है इन बैंगलोर, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिमोट वर्क एज वेल. बट उस टाइम पे ये था फिलोसफी कि आपको उनको, लेट्स से यू डोंट हैव टू फ्लाई देम फॉर एन इंटरव्यू, या वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, राइट? तो काफ़ी उनका कॉस्ट सेविंग एक हिसाब से ना, क्योंकि लोकल टैलेंट को वो पहले रीच आउट करते हैं. तो वो माइंडसेट था. So I don't know if that still prevails, but from that perspective, I was telling कि how location plays an important role कि आप कहाँ पे college ले रहे हैं. Because जैसे a city like Bangalore, आपको पता है कितनी companies है वहाँ पे, right? From startups to big companies to consultancies, you will find all kind of companies there. So even access to people is easier. Networking events होते हैं काफ़ी जगहों पे, और अगर आप उस networking event पे even as a volunteer जाएंगे,
You will have मीटअप access to so many. मीटअप एक Exactly. मीटअप एक Exactly. वेबसाइट है। Right. And similarly, you have these community groups also within the college. Like हर एक university का अपना एक Google का एक group रहेगा या Microsoft का रहेगा, because I know we have done couple of these things in the गूगल past, right? पार्टनर, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स। Exactly. Right. Absolutely. So that really helps because अगर आपको like minded people मिलेंगे, अगर आपको access to people मिलेगा कहीं पे भी, that will of course help you, right? But मेरी experience में what really helped me is that my college was located in a very convenient place, and also what we saw कि companies जो आती थी college में, those were also really good, and a lot of credit goes to our alumni and to our professors जिन्होंने वो रेपो रखा उन कंपनीज के साथ, राइट? अगर आपका एलुमनाई अच्छा नहीं है तो हाउ वुड यू हैव गुड कंपनीज कम टू योर कॉलेज? So a lot of that goes back to that as well. So kind of, I think these all factors do really play an important role, I would say. But given that, I would still say there is no harm in going out and applying for the off-campus jobs, and that should also be taken if at all people are not comfortable accepting something which is coming in campus and they are not happy with that opportunity. सो आपने कब डिसाइड किया कि लाइक मास्टर्स करनी है, और क्या मोटिवेट किया कि साइबर सिक्योरिटी में ही करनी है? Oh, okay. So let me clarify. मेरा master's cybersecurity में भी नहीं था again. It was a generic master's in computer science. And तो मेरा एक जो सबसे पहले I'll go to the point where what motivated me, right? तो I think मेरे साथ एक चीज़ थी कि my professors, they were my real motivation. Because from bachelor's उन्होंने मुझे कहा था कि you should go out and do your masters and study abroad, right? So kind of they always had that on in back of my head key, you should basically appear for your masters, do higher studies, gain more expertise in a domain and build up on that. तो मेरा उनको कहना यही था कि आई रियली वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड आउटसाइड देयर, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था ना, अगर मैं अंडरग्रेड के बाद डायरेक्टली मास्टर्स पे जाऊं, इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू द अदर इंस्टीट्यूट. I would have zero knowledge about कि भाई real world क्या चाहती है. So I wanted to give myself that time, let's say 2 years मेरे टाइम पे तो वही था. तो मैंने अपने आप को 2 साल दिए कि let me just figure out what is the market out there, what is the real world problems which we as engineers are solving, right? तो मेरा वो thought था उस टाइम पे. And फिर when I spoke to my professors again, because I don't know if you know about the process, you do have to get some letter of recommendations from लेटर your ऑफ professors, रिकमेंडेशंस, यस। right? तो that way you know कि they were in constant touch with me. ऐसा नहीं हुआ कि they were not in touch with me, and तो उनका वो हमेशा से था कि यार शिवम just go out, right? तो because they एक्सप्लोर would have करें। also exactly, क्योंकि उनको पता था कि बाहर जाके मे बी हिज जो स्किल सेट है वो डबल ट्रिपल हो जाए, ऑगमेंट हो जाए, राइट? सो दैट्स द फ्रेम ऑफ माइंड दे वर कमिंग फ्रॉम. And I really thank them for their guidance throughout the process. And जितना भी सपोर्ट उनसे मिला, आई थिंक इट्स एक थैंक यू बोलना बहुत कम रहेगा. बट या टू कम बैक टू द पॉइंट, तो उन्होंने ही मुझे काफ़ी इंस्पायर किया बाहर जाने के लिए. बट एट द सेम टाइम मेरा कहना उनको यही था कि लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन और गेट टू नो व्हाट इज़ द जॉब मार्केट आउट देयर, understand those intricacies and the challenges which we are solving as engineers, and then maybe I'll go there because I'll be more polished, right? तो फिर जब बात आई मास्टर्स की, तो देयर वर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ विच आई सॉ जहाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट था अप्लाई करने का, एंड ऑल्सो दैट हैपेंड थ्रू माई एलुमनाई कम्युनिटी कि कुछ कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी थे, तो आई हैड हर्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटीज़, राइट? बिकॉज इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर पीपल जो पहली बार ऐसा सोच भी रहे हैं कि यूएस जाना है या कोई भी कंट्री में जाना है फॉर एग्जाम्पल. सो हाउ डू यू जस्ट लीव बिहाइंड एवरीथिंग एंड जस्ट गो देयर when you are very much kind of comfortable in what you are doing, right? सो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन फिर से या एक मोटिव होना ज़रूरी था उस टाइम पे. एंड आई फाउंड आउट कि एएसयू का जो मास्टर्स कोर्स है, दैट वाज वेरी हैंड्स ऑन. लाइक ये बात तो मुझे कहनी चाहिए कि जितना हैंड्स ऑन कोर्स उनका था, आई हैवंट सीन इन एनी अदर यूनिवर्सिटी. बिकॉज उसका क्या फ़ायदा, उस मास्टर्स का क्या फ़ायदा कि अगर आप वापस जाके वही कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ रहे हो, वही डेटाबेसेस पढ़ रहे हो अगेन, राइट? सो दैट वाज नॉट समथिंग विच आई वाज इंटरेस्टेड इन. And when I saw their curriculum, it was more into, like, let's say,
something around social engineering, something around data mining, some web databases or something. So very practical form of education, right? And which was really inspiring for me at that time कि यार अब तो मोटिव मिल गया कि ये चीज़ें मुझे करनी है. एंड यू विल बी शॉक टू नो कि वहाँ जाकर भी जो मेरा कंसंट्रेशन था दैट वाज मोर इनटू डेटा साइंस, लाइक मशीन लर्निंग हो गया या ये चीज़ें हो गई. वहाँ मेरा कंसंट्रेशन उस पे था. बट ऑफ कोर्स मेरा एक मैंने कोर्स लिया था ऑन कंप्यूटर सिक्योरिटी अगेन, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी. एंड द आइडिया बिहाइंड दैट वाज कि मेरे कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट दिस सब्जेक्ट. तो वो वहाँ पे इंटरेस्ट वापस आ गया उस चीज़ का. तो जो हमारे प्रोफेसर थे उस टाइम पे, ही वाज लाइक ही न्यूली जॉइंड द कॉलेज एंड उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सा कोर्स वर्क हमारे लिए प्रिपेयर किया था. एंड दैट कोर्स वर्क वाज 85% हैंड्स ऑन. तो इफ़ आई हैव अ मिनट आई कैन टॉक अबाउट दैट रियल क्विक कि कैसा उन्होंने कोर्स वो वर्क बनाया मैं था. हम लोग करते हैं, पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि लाइक हाँ. किसी को कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए। आपने तो चूज राइट. कर लिया कि आपके एलुमनाई कनेक्शंस हैं, आप कितने डिफरेंट राइट. डिफरेंट ग्रुप से कैसे किसी को कांटेक्ट मिले राइट. बाहर के एलुमनाइज का जो राइट. उस कॉलेज से पढ़े हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन कोई भी कॉलेज कैसे सेलेक्ट करे एज अ राइट. टीचर्स देख के वहाँ के यूनिवर्सिटीज पे कौन पढ़ा रहा है, किसके अंदर रिसर्च करनी है या किस बेसिस पे कोई साइट्स राइट. हैं। वेरी यस. वेरी गुड. सो जैसे मैंने बताया कि जो एक मोटिव आपका होता है कि आप मास्टर्स करने क्यों जा रहे हो, पहले आप वो क्लियर कर लो कि क्या आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में करना है मास्टर्स. तो वो चीज़ें बहुत ही बेसिक हो गई ना कि आपको वो क्लैरिफाई करनी है, बिकॉज मास्टर्स इज समथिंग आप एडिशन कर रहे हो टू योर बैचलर्स प्रोग्राम. सेम नहीं होना चाहिए. तो ये एक पहला फंडामेंटल चीज़ है टू फिगर आउट कि यार आपको मास्टर्स किस में करना है, पहले वो समझना है. फिर दूसरी बात ये आती है कि कोर्स वर्क कैसा है यूनिवर्सिटी का, राइट? कि कहीं कोई रेपिटेशन तो नहीं है, कुछ आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्पेंडिंग मनी, राइट, व्हेन यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स आउटसाइड या कहीं इंडिया में भी अगर आप कर रहे हो मास्टर्स, तो यू आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करिकुलम कैसा है उस कोर्स का. Third, yes, the professors. Because a lot of these colleges have really good professors which can basically inspire you to be in that particular field, right? जैसे मैंने बताया कि जो हमारे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के प्रोफेसर थे, दे वर अमेजिंग. लाइक जितने भी हमारा पूरा टीचर्स या जितने भी प्रोफेसर्स थे हमारे, सब लोग वो डेफकॉन में पार्ट लेते थे एंड दे हैड लाइक एन अमेजिंग पोर्टफोलियो विच दे बिल्ट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, राइट? So kind of that really inspires you to be in that domain also a lot of times, right? And then I think the other factors which come to mind is the cost factor as well, I would say. कि आपको ये ज़रूरी देखना है कि आप जितना बजट आपका है उसके हिसाब से आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो. कैन यू गो टू यूएस, कैन यू गो टू यूके या ऑस्ट्रेलिया, या कहाँ आप जा सकते हो, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट देर आर सम गुड ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वेल विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि यार अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो कौन कौन सी टॉप फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड हाउ डू यू गेट इन टू दोज यूनिवर्सिटीज़. तो काफ़ी एक ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है इन चीज़ों के बारे में भी विच कैन गाइड यू थ्रू ऑल दिस एंड हेल्प यू बेसिकली एंटर एनी यूनिवर्सिटी ऑफ योर प्रेफरेंस एट द एंड ऑफ द डे. तो वो है. एंड एट द एंड ऑफ द डे देर आर अदर थिंग्स लाइक फेसबुक कम्युनिटीज़ थी उस टाइम पे. ये तो मैं थोड़े सालों की बात पहले की कर रहा हूँ बात, जहाँ की यू हैव फेसबुक ग्रुप्स वे यू वुड ज्वाइन कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है. एंड देन वहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होता था. जो कि अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट्स जो हैं वो सब आपस में बात करते थे कि यार मेरा ये इंटरेस्ट है एंड आई एम अप्लाइंग टू दीज यूनिवर्सिटी, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो काफ़ी वो चीज़ें भी होती थी उस टाइम पे एंड आई थिंक स्टिल दोज थिंग्स हैपन. So I would say ये combination of these factors will basically help you be there and find out your alumni, because that is the strongest connection which you will have to figure out these things. अगर आप ही के कॉलेज से कोई बंदा कहीं गया है तो you can definitely reach out to them and get more insights कि how things work, how is the entire process, and get to know more about this entire journey of thinking about masters. ओके। सो आपने जीआरई की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, वहाँ उसको कैसे टैकल किया एज अ जॉब के साथ। सच बताऊं तो जीआरई की प्रिपरेशन मैंने 4 days में की है. तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ
ये रहता है कि जब कभी आप टाइमलाइन नहीं दो किसी चीज़ को ना, तो वो सेल्फ पेस्ड जिसको कहते हैं हम, उसका वो वैल्यू ही चला जाता है। लाइक इवन इफ इट इज सेल्फ पेस्ड, यू हैव टू गिव इट लाइक अ डेडलाइन कि यार ये मेरा माइलस्टोन है, आई हैव टू एंड इट बाय दिस पर्टिकुलर डेट। अब चीज़ें कुछ हुई थी ऐसी, आई कांट शेयर इट लाइक दैट हियर, बट इट वाज अराउंड 2017 जब मैंने जीआरई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एंड आई न्यू कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीआरई में आता ही आता है, वो क्वांटिटेटिव जो आपका रहता है कैपिटाइट, तो वो मेरा सही था, आई न्यू। तो मुझे बस ब्रश अप करना था बेसिकली स्किल्स कुछ अपने। और उस टाइम पे एक ऐप आता था विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यार आप आधे घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर 1.5 घंटे में कितने कर पा रहे हो। तो मुझे बस वो स्पीड में प्रोफिशिएंसी चाहिए थी। एंड ओवर दैट 4 डेज जब मैंने अपना टाइमर स्टार्ट किया, तो मैंने बस उसी को प्रोग्रेस करता गया कि हाउ विल आई सॉल्व अ क्वेश्चन वेरी क्विकली। बिकॉज क्वेश्चंस वो बेसिक हैं। 10th का अगर आपने मैथ कर लिया है, आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलस तो दूर दूर तक नहीं है ना, तो आपको बेसिक मैथ ही पूछा जाएगा। एंड रही बात इंग्लिश की, तो कुछ इंग्लिश आपको पहले से जितना आता है उसी के ऊपर अगर आप कुछ फ्लैश कार्ड्स पढ़ लो। बहुत सारे कंपनीज के आजकल फ्लैश कार्ड्स आते हैं विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द रूट वर्ड कि यार इस वर्ड का मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें। बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं होगा वहाँ पे जब आप एग्जाम लिखोगे कि इसका मतलब क्या है। तो एक ट्रिक्स रहती हैं कुछ समझने की वो। तो अगर आप बस वो 2-3 चीज़ें ही कर लो, दैट इज़ इनफ टू गेट अ वेरी डिसेंट स्कोर। 320 या 322 के अराउंड आपका डिसेंट स्कोर आ जाएगा अगर आप यही सब करोगे। एंड अगर आप टॉफिल की बात करो, बिकॉज दैट वाज माय सेकंड एग्जाम व्हिच आई हैड टू गिव, तो वो पूरा इंग्लिश रहता है आपका। उसमें रिटन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स एंड ये सारे स्किल्स आपके वहाँ कॉम्प्रिहेंड होते हैं। एंड तो द आइडिया इज़ अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो वो भी आपका हो जाएगा सॉल्व। जैसे आपको स्पीच वाला जो सेक्शन रहता है उसमें अगर आप क्लियरली बात करेंगे, बिकॉज कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके जो सेंटर होता है उसमें बाकी लोग भी बात करते हैं। तो अगर उस टाइम पे आप लेट्स से आपका स्पीच वाला सेक्शन आ गया, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू फोकस ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग, बिकॉज बाहर से भी साउंड आपको आता रहेगा। तो जस्ट फोकस ऑन दैट, वही एक रहेगा मेरा तो एडवाइस। बट अदरवाइज वो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी आपका इजीली हो जाएगा प्रेप। उसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि कुछ गाइड पढ़नी है, कुछ पढ़ना है। बहुत बेसिक्स रहता है आपका। एंड अगर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न क्या रहता है, सैम्पल पेपर्स आते हैं टॉफिल के भी। So if you just go through those sample questions, those are more than enough to just get a very decent score in TOEFL. And decent score, when I say it's around more than 100 या कोई भी score आ जाए आपका 100 से ऊपर, that's a very good score to have. सो आप अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बताया, और क्या क्या स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी आपने पढ़ा, Right. सब्जेक्ट्स। तो ये मास्टर्स की हम बात कर रहे हाँ, हैं ना अभी। मास्टर्स, हम अब मास्टर्स मास्टर्स में, पे हाँ। शिफ्ट आ गए। बढ़िया। तो हाँ, मास्टर्स में जैसे मैंने कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एक कोर्स था। एंड जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने पूरा हैंड्स ऑन एक कोर्स बनाया था। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको। हमारी जो असाइनमेंट्स होती थी, आप समझो लाइक एक लेवल, लेट्स से एक क्वेश्चन दिया गया है तो वो बेसिक क्वेश्चन रहेगा तो उसका लेवल 0 होगा। तो जब आप उसका आंसर करेंगे, दैट हेल्प्स यू टू अनलॉक द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज आपको वो आंसर सबमिट करना है उस पोर्टल पे। एंड तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसे ही एक एडवांसमेंट बेसिकली टाइप ऑफ उन्होंने लर्निंग सीरीज बनाया था फॉर ईच सब्जेक्ट, लाइक ईच कोर्स विद इन सिक्योरिटी। लाइक लेट्स से क्रिप्टोग्राफी हो गया, तो उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। वेब सिक्योरिटी हो गया, या इन सीक्वल इंजेक्शंस हो गए, या कंपाइलर का वो एप्लीकेशन जो रहता है आपको, जैसे मेमोरी का अगर आपको एनालिसिस करना है, वो सब चीज़ें हैं। इस सब के लिए ही हैड बेसिकली प्रिपेयर्ड लेवल बेस्ड प्रोग्रेशन ऑफ द होमवर्क असाइनमेंट। एंड वो काफ़ी एक इंसेंटिव रहता है ना कि यार आई वांट टू बी एट अ हायर लेवल। तो वो उन्होंने किया था। एंड एट द सेम टाइम ही हैड पुट अ लीडर बोर्ड ऑल्सो समवेयर कि कौन सा जो कोर्स में स्टूडेंट है वो किस रैंक पे है अभी। तो एक हिसाब से वो एक कंपटीशन भी था, पर एट द सेम टाइम अगर आप उसको लर्निंग के हिसाब से देखो, काफ़ी लर्निंग थी उसमें। बिकॉज वही कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने कैसे कॉन्क्रेटाइज कराया हमारे दिमाग में, वो बेसिक फंडा था उस चीज़ का, राइट। एंड ये तो एक होमवर्क का सेक्शन हो गया, राइट।
दूसरा सेक्शन था कि एवरी ऑल्टरनेट वीक हमारा इन क्लास एक कैप्चर द फ्लैग कंपटीशन होता था। तो डू यू नो अबाउट इट? ओके। तो कैप्चर द उसमें फ्लैग, मैं यस। एक समरी देता हूँ कि बहुत सारे टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड एक गेम बोर्ड रहता है जो कि हर, लेट्स से 2 मिनट के बाद एक फ्लैग हर एक इन 15 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। तो इन 15 टीम्स में कोई एक ऐसा सर्विस चल रहा होगा विच इज़ एक्सप्लॉयटेबल, कुछ तो उसमें वल्नरेबिलिटी रहेगी। तो एज अ पार्टिसिपेंट आपके दो चीज़ें रहती हैं मेन फोकस। एक तो अपनी सर्विस को आपको पैच करना है, दूसरा आपको अटैक करना है दूसरे सर्विसेज को। जितने भी आप फ्लैग्स ले पाओ उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और फिर यू विल बी एट द टॉप ऑफ द गेम, राइट? तो ये चीज़ें थी। एंड इमेजिन कि एवरी ऑल्टरनेट वीक आपके साथ एक कैप्चर द फ्लैग हो रहा है, एंड विथ डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे क्रिप्टोग्राफी एक टॉपिक था, वेब सिक्योरिटी, तो जैसे आपका होमवर्क था वैसे ये भी साथ साथ एक पैरेलल ट्रैक पे चल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपोजर हमें उस टाइम पे हुआ। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट आई फिगर्ड आउट अबाउट माई सेल्फ इज़ कि मुझे सर्विसेज पैच करनी आती थी। तो दैट वाज द मोमेंट वेयर मेरे प्रॉफ ने आई थिंक हाफ ऑफ द सेमेस्टर के हमारी पूरी टीम को बुलाया, एंड ही क्वेश्चनड अस कि व्हाई आर यू कमिंग लाइक इन मिडल ऑफ द लीडर बोर्ड ऑल द टाइम, लाइक आप फिफ्थ सिक्स्थ क्यों रैंक कर रहे हो, आप टॉप पोजीशंस पे क्यों नहीं आ रहे हो, राइट? दैट वाज हिज क्वेश्चन। एंड व्हेन वी लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट अबाउट दैट फैक्ट, हमें यही पता चला कि हम लोग तो बस पैचिंग की बात कर रहे हैं। हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, बट हमने अटैक को तो ऑटोमेट करा ही नहीं। और कैप्चर द फ्लैग में तो मैक्सिमम पॉइंट्स तब आएंगे ना जब आप अटैक करोगे अच्छे से, और जितना ज़्यादा अटैक करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आप ले पाओगे। तो आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन हम, मेरा जो स्पेसिफिक माइंडसेट था फ्रॉम जस्ट डिफेंसिव चेंज टू ऑल्सो हाउ आई शुड प्लान ऑन ऑटोमेटिंग माई अटैक्स, और इवन अटैकिंग फॉर दैट मैटर, राइट? सो वो जो एक शिफ्ट था दैट हेल्प्ड अस इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू परसीव सिक्योरिटी इन डिफरेंट वेज, राइट? क्योंकि तब तक मेरा जो मतलब बिल्कुल ही अपब्रिंगिंग के हिसाब से कह लो, वो यही था कि आपको अपना सॉफ्टवेयर सिक्योर बनाना है। एंड थ्रू माई पास्ट एक्सपीरियंसेस मैंने वही करा भी था कि सॉफ्टवेयर बनाया, इंश्योर किया कि हम सिक्योर लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो भी एपीआई लेवल सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं वो हम कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो चीज़ें हमने सीखी थ्रू दैट, मे बी कैप्चर द फ्लैग, या फिर इवन फॉर दैट मैटर जो हमारे होमवर्क असाइनमेंट्स थे, दैट वाज द रियल लर्निंग। बिकॉज काफ़ी वो हैंड्स ऑन जो आपको एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे, अब वो चीज़ मुझसे तो कोई वापस ले नहीं सकता है, right? So I think those are the things which I really appreciate now. And now when I'm in the industry, now I see even more fields in the same cybersecurity space, right? So that's, I think that's how I define my time during masters in cybersecurity space in general. सो आपको इंटर्नशिप कैसे मिली वहाँ पे एज अ न्यूली इंडियन गाय? कैसी Right. डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और वहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? Right. I think I won't say it is easy because being in US आपके पास US एक्सपीरियंस तो नहीं है, राइट? तो और आपके पास बस वो 1 डेढ़ साल का ही टाइम होता है कि आपको इंटर्नशिप भी सीख, ऐसा नहीं है कि आप अंडरग्रेड कर रहे हो तो 4 साल का टाइम है तो आपने दूसरे साल में भी कर ली, तीसरे साल में भी कर ली। तो काफ़ी वो चीज़ें भी एक चीज़ रहती है कि हाउ विल अ कंपनी ट्रस्ट यू, राइट? तो आई थिंक उस टाइम पे मेरा फोकस तो फर्स्ट सेम में खैर इंटर्नशिप लेने का नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा फोकस था कि जो मैंने कोर्सेज लिए हैं आई नीड टू अंडरस्टैंड जो नुआंसेस हैं उस कोर्सेज के। और वो सारे चैलेंजिंग कोर्सेज मैंने फर्स्ट सेम में ही ले लिए थे, एंड आई हैड नो आइडिया कि इतना चैलेंजिंग कोर्स रहेगा, राइट? तो उस हिसाब से मेरा जो जर्नी था ऑफ इवन हंटिंग फॉर इंटर्नशिप्स दैट स्टार्टेड अ लिटिल लेट कंपेयर टू अदर पीपल, विच वाज अराउंड मे बी जनवरी of the spring semester. आफ्टर सिक्स Y- मंथ और 7 मंथ आई गेस। या क्योंकि हमारा अगस्त में फॉल सेमेस्टर फॉल, स्टार्ट होता यस, है। ओके। हाँ। तो मैंने उस पूरा सेमेस्टर मैंने फोकस नहीं किया कि मुझे ऑन कैंपस जॉब चाहिए वो चाहिए, बिकॉज आई हैड जस्ट फ्रेशली मोस्टली कम आउट लोग, ऑफ हाँ, जॉब, राइट? मोस्टली लोग हाँ, एग्जैक्टली। जाते ही वहाँ पे एग्जैक्टली। फिगर आउट यस। करते हैं कि जॉब कैसे That पाएं। is one advice, like personally, which I would want to share with people is कि just explore। जो आपका फर्स्ट सेम रहेगा बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। मतलब आप एक नए कंट्री में जा रहे हो, आप नए कॉन्टिनेंट में जा रहे हो। आई एम टॉकिंग इन स्पेसिफिक टू यूएस। इंडिया में तो खैर आप इंडिया में ही हो,
बट इन कंपैरिजन टू मूव फ्रॉम इंडिया टू यूएस, राइट, आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सोशल सर्कल है वो आपने कैसा बनाया, बिकॉज इमेजिन जो आपके नियर बाय लोग हैं वही आपके पहली चीज़ के बारे में जानेंगे, जो भी आप करोगे पहले उन्हीं को पता चलेगा आपके बारे में, राइट। तो आई think those are the things which I really want people to know. These are some things which people don't often talk about. कि find out that circle which will keep you positive all the time, right? मतलब I am really grateful for my roommates ड्यूरिंग माई एंटायर टाइम इन मास्टर्स एज वेल। बैचलर्स में तो खैर है ही है, बट मास्टर्स में भी कि कितना सपोर्टिव थे वो। नॉट इवन वंस उन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिविटी या कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया था घर में कि मतलब बिल्कुल परेशान होता है बंदा कि यार जॉब नहीं मिल रही, अप्लाई नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी वहाँ पे। एंड जो भी छोटी छोटी खुशियाँ भी थी हमने सब एक साथ मतलब सेलिब्रेट की हैं। तो आई थिंक दैट टॉक्स वॉल्यूम्स अबाउट द पीपल अराउंड यू एज वेल, राइट। चाहे वो आपके रूममेट्स हो या आपके फ्रेंड्स बने हो मास्टर्स के टाइम पे, तो वो बहुत ज़रूरी एक इमोशनल जो सपोर्ट होता है ना, वो आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए रहता है उस टाइम के दौरान। बट गिवन दैट एक चीज़ जो मैंने टेक्निक यूज़ करी वहाँ पे, एंड विच आई अगेन फील कि बहुत लोग शायद वो यूज़ करें, इज़ कि फाइंडिंग योर सेल्फ बडी टू वर्क विथ। बिकॉज वो जो इंस्पिरेशन या जो मोटिवेशन आता है ना कि यार चलो आज हमें 2 घंटा लेट्स से सपोज फोकस करके ये चीज़ करनी ही करनी है, लेट्स से इट इज़ लीड कोड, लेट्स से डेटा साइंस से कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं आपको या कुछ भी हो, या लेट्स से आपको वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन करना है। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स आउट देयर जो कि आजकल ये सब ऑटोमेटेड फैशन में देते हैं, राइट। हैक द बॉक्स करके है, या विज डॉट आईओ का एक वो आया है, चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस आए हुए हैं। तो द आइडिया इज कि जो भी आप इंटरेस्टेड हो करने में, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम एवरी डे, क्योंकि दैट बिल्ड्स ऑन यू। तो वो मैं कर पाया थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ अ बडी, राइट। तो मैंने देखा कि वन ऑफ द अदर फ्रेंड्स ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स व्हिच आई वाज परस्यूइंग। तो वी केम टुगेदर, हमने कहा ठीक है, ड्यूरिंग योर टाइम यू वर्क ऑन दीज 4 प्रॉब्लम्स, आई विल वर्क ऑन दीज 4 प्रॉब्लम्स, बट व्हेन वी मीट फॉर दोज 2 आवर्स वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो हमने एक बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी अप्लाई की यहाँ पे, एंड एट द एंड ऑफ द डे नाउ यू नो 8 प्रॉब्लम्स हाउ टू सॉल्व दैट। सो दैट इज अ विन विन दोनों के लिए, राइट, कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्क्रिटाइज भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम, एंड यू आर एबल टू वर्क ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड नॉट जस्ट 4 प्रॉब्लम्स विच यू थॉट यू वुड हैव सॉल्व्ड इन दैट डे। So that really came handy. And my internship journey, again, going back to the question which you asked, तो वो फिर जैन में स्टार्ट हुआ। मैंने started applying for companies, and वहाँ पे भी मेरे साथ एक ऐसा एक एपिसोड हुआ कि जहाँ एक डेटा साइंस इंटर्नशिप, जिसको हम अप्लाइड साइंटिस्ट का एक इंटर्नशिप रोल होता है, वो आया था एक। एंड मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, दैट इज समथिंग विच आई फील, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैड टू टेक अ पीएचडी कैंडिडेट फॉर दैट स्पॉट, राइट। तो वो एक मेरी लाइफ में ना ऐसा आया कि यार फिर वाई वॉज आई इवन कंसिडर्ड फॉर दैट पोजिशन, because I would have probably invested somewhere else my time, right? तो थ्रू दैट व्हाट आई लर्नड, मेरे जो मैनेजर थे पुरानी कंपनी में, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी व्हेन आई लेफ्ट। ही सेड ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। सो मैंने कहा उस टाइम पे कि समथिंग विच आई नो ऑलरेडी इज सॉट फॉर डेवलपमेंट, आई हैव डन दैट इन द पास्ट, आई नो आई कैन डू इट स्टिल। So that is something which I built on top of it. And I was like, let's apply for software engineering roles now as interns. And that's when it clicked. And in Feb, I had my first interview. अगेन वो प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, वहाँ पे बस एक दिन में 4-5 राउंड थे, जहाँ की फर्स्ट राउंड वाज अराउंड अ डिज़ाइन प्रॉब्लम। एक बहुत ही जेनेरिक लेवल पे आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, एंड यू हैव टू जस्ट आंसर डिफरेंट रेल्म्स ढूंढ के, कि जैसे सिक्योरिटी अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आप डेटाबेस की बात करो स्टोरेज कैसे करोगे इन चीज़ों का, तो काफ़ी वैसा डिस्कशन था। And then there were technical discussions also further, which were into my previous work, what I have done, and then also there were coding questions which they asked. So it was a mix basically. वो but 3-4 round थे ऐसे,
And at the end of the day, I think in March or April May, then I received my offer, and it was for the software engineering internship at Teletracking, which is based out of Pittsburgh here in US. So I had to fly to Pittsburgh actually. मतलब मेरी state में नहीं था वो internship opportunity. I had to go to some other place and spend summer over there. And as part of the summer internship, what I did, I was also extended a part-time job for my fall semester. सो वो चीज़ वहाँ पे हुई। तो मैंने फॉल में भी उन्हीं के साथ काम किया। तो वो एक हेल्थ केयर कंपनी है, एंड वी बेसिकली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स फॉर पेशेंट वर्कफ्लो ऑटोमेशंस, और ये सब चीज़ें बेसिकली हमने करी वहाँ पे। तो हाँ, आई थिंक ये जर्नी फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है, राइट? एंड दैट्स व्हाट हैपेंड देयर। बट दैट्स व्हाट आई वुड डिस्क्राइब कि कैसा वो एक्सपीरियंस था पूरा, बिकॉज वहाँ पे भी मेरा वो इमीडिएट थॉट ये नहीं था कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ही इंटर्नशिप चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि यार देर इज़ अ क्लॉक विच इज़ रनिंग ऑल द टाइम, कि यही टाइम है, वही आपका लास्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिला तो यू लूज द एबिलिटी टू फाइंड इंटर्नशिप, राइट? बिकॉज समर, नेक्स्ट समर में आपको इंटर्न करना है, तो हाउ वुड यू गेट इन टू इंटर्नशिप, राइट? तो वही सारी फैक्टर्स थे कि जो मेरे मैनेजर ने भी मुझे बताया था एडवाइस, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, एंड देन आई अप्लाइड फॉर दैट इंटर्नशिप बेसिकली। तो देन उसके बाद आपको जॉब कहाँ पे मिली? जॉब सेम कंपनी में थी जहाँ से आपने इंटर्नशिप करी या फिर कोई डिफरेंट कंपनी थी? हाँ, तो मैंने उनके साथ पार्ट टाइम भी काम किया था नेक्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद ड्यूरिंग दैट सेमेस्टर आई आल्सो अप्लाइड फॉर अमेज़न, जो कि दे वर लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगेन। एंड वो भी एक 3 राउंड्स उनका भी अपना रहता है। फर्स्ट राउंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन असेसमेंट एक रहता है जो आपको क्लियर करना है। वंस यू क्लियर दैट, फिर आपका सेकंड राउंड असेसमेंट आता है, विच इज़ मोस्टली अराउंड वर्क लाइफ सिमुलेशन, राइट? कि कुछ एक रियल वर्ल्ड जो उनके चैलेंजेस रहते हैं, उनके बेसिस पे यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। कुछ वो एक स्पेक्ट्रम रहता है 5 ऑप्शंस का, एंड यू हैव टू आंसर कि अगर आप उसकी जगह होते, उस इंजीनियर की जगह होते, तो आप क्या डिसाइड करते, हाउ वुड यू हैंडल दैट प्रॉब्लम, राइट? एंड जो लास्ट इंटरव्यू रहता है, द थर्ड राउंड, दैट इज़ मोर कॉन्वर्जेशनल, जहाँ पे कि एक इंटरव्यूअर रहता है, एंड दे आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस, एंड दैट्स द फाइनल राउंड। एंड उसके बाद आपकी एक टीम मैचिंग, बिकॉज ये जो मेरा एक सेगमेंट था, दैट वाज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रेड पोजीशन, राइट? कि मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, एंड आई एम अप्लाइंग एज अ फ्रेश ग्रेजुएट विच हु कंप्लीटेड द मास्टर्स इन यूएस। तो उनका ये ट्रैक भी एक रहता है यूनिवर्सिटी हायरिंग का। एंड उसके बाद एक, वंस सपोज एवरीथिंग इज डन, आपका एक ऑफर लेटर आ जाता है, एंड देन दे हैव अ टीम मैचिंग थिंग विच रन्स इन द बैक एंड, एंड देन दे सेंड यू एन ईमेल सेइंग कि आप इस टीम के पार्ट रहोगे। तो दैट्स हाउ दैट लास्ट सेमेस्टर में, तो मेरा मास्टर्स एक सेमेस्टर पहले ख़त्म हुआ, which was in third semester, and I was able to get a job, and from March of 2020 I was working for Amazon as a software development engineer finally. तो वो एक जर्नी वैसा था फिर फाइनली उधर। सो आपने कितनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है? कौन सी जॉब रोल पे काम किया है और किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया? बेसिकली वर्क क्या होता है करेक्ट। उसको थोड़ा आप बताएं कि लाइक स्टार्टिंग से अब तक। राइट, तो आई थिंक अभी तक तो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन सी कंपनीज में आई हैव वर्कड, बट आई थिंक नाउ आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम अमेजोन अगेन। कि within Amazon, when I started, I was working for their gaming service, which is called Luna. Amazon Luna करके एक उनका गेमिंग सर्विस है, एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे जो कि अगेन ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज पे जाएंगे, बिकॉज उनका ई कॉमर्स टीम था जो मैंने ज्वाइन किया था। तो पेमेंट्स हो, एंटाइटलमेंट्स हो, ये सब हम चीज़ें वहाँ कर रहे थे। एंड वहाँ पे एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग था प्रोजेक्ट था, विच स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ साइबर सिक्योरिटी अगेन इन अ वे और द अदर, वेयर हमने प्राइवेसी को लेकर एक प्रोजेक्ट करा। तो यू वुड नो कि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ DSAR, जो एक गवर्निंग रूल्स होते हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग रहते हैं। GDPR, DSAR, देन डिलीट रिक्वेस्ट, तो ये सब क्या है, बेसिकली एक लॉज हैं कुछ जो बताते हैं कि जो कस्टमर डेटा है आपका, वो कैसे आपको स्टोर करना चाहिए और कब डिलीट करना चाहिए, ये सब। रिटेंशन पीरियड उसका क्या रहेगा? एग्जैक्टली, रिटेंशन पीरियड क्या है, फिर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन प्राइवेसी एक्ट, ये सब भी चीज़ें हैं। तो वो हमें इम्प्लीमेंट करने को मिला यहाँ पे, विच वॉज अराउंड डेटा प्राइवेसी, राइट?
तो वेयर यू वांट टू सिक्योर कि जो भी आप चीज़ें स्टोर कर रहे हो अपने बैकएंड डेटाबेसेस में, वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वो पर्सनल आइडेंटिफाइबल चीज़ें हैं या नहीं है, लाइक पीआईआई डेटा जिसको हम कहते हैं जनरली, तो वो चीज़ें उसको हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर है। दीजिए, पीआईए क्या होता है और हाँ, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशंस क्या श्योर। होती है। श्योर, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है या पैन कार्ड नंबर है, तो अगर वो आप स्टोर करोगे, वो आपका एक पर्सनल एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन कोई जान सकता है। वैसे यूएस में एसएसए नंबर एक हो गया या एड्रेस हो गया फॉर दैट मैटर, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फ़ोन नंबर हो गया, जिससे एक इंसान के बारे में पता हम कर सकते हैं। तो द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कि कैसे हम ये पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें फ्रॉम यूजर्स विद देयर कॉन्सेंट, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं। एंड जो हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे थे, दैट ऑल्सो वुड गिव देम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव स्टोर्ड इन ऑल आवर सर्विसेज इन द बैक एंड, राइट। तो लेट्स से आप एज अ यूजर ऑफ amazon लूना वेबसाइट पे जाते हैं कि गिव मी द डेटा व्हाट यू हैव स्टोर्ड। जब आप डंप डेटा का लेंगे, उसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो जो हमने स्टोर करके रखा है वो आएगा। अब हमारा एम ये था कि कोई भी पीआईआई डेटा इसमें नहीं रहे, राइट। तो वैसे हमें सिस्टम्स बनाने थे कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जिससे हम एक इंसान को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इंसान है। वो सारा डेटा हमें रिडैक्ट करना होता है बेसिकली। वो टर्म यूज़ करते हैं हम, रिडैक्शन, या मास्क करते हैं उन चीज़ों को। तो वो कपल ऑफ थिंग्स थी जो हमने करी। सिमिलरली डिलीशन के ऊपर, जैसे कि अगर आप एज अ यूज़र बोलते हैं कि आपका सारा डेटा डिलीट कर दिया जाए ऑन amazon लूना, तो वो हमें रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना होता है विद इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वो सारी चीज़ें अगेन लेड टू मी थिंकिंग अबाउट डेटा privacy, एंड समवेयर और द अदर इट लीड्स टू सिक्योरिटी आल्सो, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी, इट्स नॉट ज़ीरो और वन, ये काफ़ी इंटरलिंक्ड है आपस में चीज़ें। एंड अगेन ये तो मैंने एक चीज़ आपको बताया प्रोजेक्ट के बारे में। तो जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो, तो यू ऑल्सो डू थ्रेट मॉडलिंग, यू आइडेंटिफाई द थ्रेट एक्टर्स ऑफ योर एप्लीकेशन। तो वो चीज़ें जब हमने फिर से देखी, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दोज नुआंसेस आल्सो, राइट, कि वो कैसे होती हैं। तो वहाँ पे जाके फिर से वो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत जागने लगा उन चीज़ों में, बेसिकली इन अ वे और द अदर। And then I moved into my recent firm, which is JPMC. And JP Morgan may, I think, when they were looking out for professionals, they wanted somebody who has expertise on cloud. And through all these years, one thing which had remained constant was my work on cloud, be it AWS, क्योंकि AWS ही हम यूज़ कर रहे थे पहले से, तो वो एक क्लाउड था जो मैंने पहले से यूएस में यूज़ मेरे करा था। हिसाब से एडब्ल्यू ज़्यादा रहता भी है। मतलब कह सकते हैं कि ये कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं कि AWS भी, जैसे अभी हम JPMC की बात करें, हम हाइब्रिड क्लाउड की बात करते हैं, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट वन क्लाउड, वी मे हैव अज्योर एज वेल, या GCP हो गया। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, हम हाइब्रिड मॉडल इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं लाइक प्राइस कट डाउन करने के लिए मोस्टली, ये क्योंकि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडब्ल्यूएस बट में काफ़ी बहुत महंगी महंगी कुछ कुछ सर्विसेज होती हैं। करेक्ट, तो इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। तो एंड ऑल्सो जस्ट वन थिंग डिस्क्लेमर, कि जो भी आज मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, दोज आर जस्ट माई व्यूज़। मुझे किसी कंपनी ने किसी भी चीज़ के लिए बोला नहीं है, एंड इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड टू एनी ऑफ दोज थिंग्स, राइट। बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन हाइब्रिड क्लाउड, ये एक काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, एंड द रीज़न इज कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच गवर्न दिस डिसीजन, राइट। एक रेजिलियंसी भी हो सकता है हम्म, कि हमें अपने सिस्टम्स को रेजिलिएंट बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि यार अगर लेट्स से AWS की एक सर्विस डाउन है, तो अब क्या करें हम। हमारा सब बैठ गया। बिकॉज इमेजिन, लेट्स से अगर हम JP मॉर्गन की बात कर रहे हैं, वी आर इन अ बैंक एंड वी कैन नॉट अफोर्ड अ डाउन टाइम लाइक दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। तो वो चीज़ें हैं कि रेजिलियंसी की बात होती है, कॉस्ट भी एक फैक्टर हो सकता है, बट देर आर मेनी फैक्टर्स विच गवर्न दिस डिसीजन एट द कंपनी एंड ऑफ का द लाइक डे। मेरा कंपनी क्या चाह रही है उसके राइट। पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो उनका भी मल्टीपल ये रहता है। एक ही फैक्टर तो नहीं होगा कि यार कॉस्ट है तो बस इसीलिए, तो वो नहीं रहता है हमेशा। तो उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं कि डिज़ास्टर रिकवरी जैसे है, कहाँ पे RTO एक कॉन्सेप्ट होता है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव, जो रिटर्न आपका टाइम ऑब्जेक्टिव, यस, ऑब्जेक्टिव। करेक्ट करेक्ट, या रिकवरी का जो आपका टाइम है वो कितना है।
तो अगर आपको कोई क्लाउड प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो दैट मीन्स यू विल नॉट चूज दैट क्लाउड प्रोवाइडर, राइट? तो वहाँ पे वो सारी डिसीजंस भी गवर्न करते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी सर्विस टीयर ऑल्सो। लेट्स से अगर एक टीयर 3 सर्विस है, उसको रेजिलियंसी के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं हो सकती है, क्या पता। विज़ाविज़ अगर एक टियर 1 सर्विस है, जो एक सेंट्रल सर्विस है किसी जगह, किसी भी कंपनी में, जिसका एक डाउन टाइम विल इम्पैक्ट रेवेन्यू बाय सो मेनी नंबर्स, राइट? तो वो चीज़ें भी डिसाइड करने में लाइक बेसिकली फैसिलिटेट करती हैं कि व्हाट इज़ बेटर, लाइक व्हाट एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक यू वे इट आउट, कि आप इसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, एंड देन यू डिसाइड कि क्या करना है। और to be honest with you, implementing a hybrid architecture is not easy. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। So there's a technical challenge even there, right? तो बहुत सारी चीज़ों का हमें सोचना पड़ता है while we project this idea, because of course when you think about hybrid cloud, तो बहुत सारे engineers they'll spend time in building that system, in architecting that system, और उसका फिर अच्छा होना, फाइनली फ्रूटफुल होना भी एक क्वेश्चन रहता है ना, पहले कि तो डू आप वी एक एक इन्वेस्ट। एक पर्टिकुलर लाइक AWS हो गया, उसको एक उस पे एक हाँ, आर्किटेक्ट बिल्ड करते हो, और फिर दूसरे, एग्जैक्टली, फिर उनको क्लब करते हो, फिर उन पे एग्जैक्टली, सिक्योरिटी कम करने की कोशिश करते हो कि वो सारे लोग साथ में काम करके सिक्योरिटी कैसे डाउन हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक इन जगहों पे ना, तो व्हाट हैपेंस इज यू नीड एसएमईज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज जो होते हैं ना, आपको वो चाहिए होते हैं कि AWS कौन आर्किटेक्ट करे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही बंदा हो वो सब चीज़ आर्किटेक्ट कर सके, बिकॉज सम लिमिटेशंस कहीं ना कहीं तो आ जाती है ना। तो व्हाट पीपल लुक फॉर इज SME पूल ऑफ पीपल, कि जो एक क्लाउड पे फोकस करके उसको सिस्टम अप एंड रनिंग करे, फिर दूसरे क्लाउड पे कोई और काम करेगा। फिर ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो कॉमन हो सकते हैं, बट सर्विसेज अलग होंगी। तो वापस पे आपको वही चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे आप इन दोनों क्लाउड्स को अब सिक्योर करने में यू पुट एफर्ट। तो ऑलवेज देयर इज दैट, क्या बोलते हैं, ever evolving these kind of problems which will come into picture when you talk about multi-cloud. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्लाउड मोर एडवांस है और कौन सा मोर मेच्योर, बहुत नीश पे कौन है? हाँ। हाँ, ये मेरे लिए एक टफ क्वेश्चन का आंसर करना, बिकॉज मेरा बायस तो AWS ही रहेगा ना, बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड इन एनी अदर क्लाउड। So I have used, or maybe I have ingested things from other cloud, but I have primarily worked only on AWS, where I have architected designs until now. तो मेरे लिए ये कहना कि कौन सा क्लाउड अच्छा है क्या नहीं, I don't think I am in the position to tell that today, at least today. नो प्रॉब्लम। आपका JP मॉर्गन का इंटरव्यू कैसा हम्म। रहा? वहाँ पे आपसे क्या क्या आर्क्स हुए? तो जो मेरा अभी का रोल है दैट इज़ इनटू क्लाउड सिक्योरिटी, एंड हमारी टीम इन स्पेसिफिक हम टूल्स टीम है, जो कि पूरे फर्म की कैसे हम सिक्योर कर सकें, जो क्लाउड एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं उन पे फोकस करते हैं हम, राइट? तो primarily, if you see, it has still connections to my past where I have architected systems in a similar fashion, right? तो वो डेफिनेटली एक कंपोनेंट तो था इंटरव्यू का, जहाँ पे कि डिज़ाइन क्वेश्चंस पूछे गए थे कि लेट्स से ये एक आपको सिस्टम बिल्ड करना है, ऑल दीज आर वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। उसमें कोई सही कोई गलत नहीं होता है। उसमें क्या होता है ना, आपका एपेटाइट देखा जाता है कि कितना इसको, कितनी डेप्थ तक इसको इन्फॉर्मेशन है चीज़ों के बारे में, एंड देन इंटरव्यूअर कीप्स आस्किंग मोर एंड मोर फर्दर इनटू इट, राइट? एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विच दे ऑल्सो लुक फॉर इज अ कोचेबल टैलेंट, कि क्या हम इस टैलेंट को कोच कर सकते हैं आगे जाके इनटू समथिंग एल्स, राइट? तो दैट इज, चलो वो तो खैर एक एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव रहता है, बट फ्रॉम द इंटरव्यूइंग पर्सपेक्टिव दैट वाज वन ऑफ द राउंड्स जहाँ के एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा, एंड यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस अराउंड दैट, एंड इट्स अ डिजाइन बेस्ड इंटरव्यू। Then there were other rounds which were of course coding, because bare minimum जो मैं काम कर रहा हूँ coding तो necessarily required है। तो you pick one language, be it Java, be it Python, you have to code। तो वो एक similar pattern तो वहाँ पे भी देखा हमने। And then there was another round which was around questions like from the past, कि हम मैंने past में क्या projects करे हैं, and then there were some, क्या बोलते हैं, टीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कि अगर ये प्रॉब्लम टीम फेस कर रही है तो व्हाट वुड बी योर सोल्यूशन इन दैट केस, राइट? तो काफ़ी वो एक
आई वुड से बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस भी थे जो वो पूछ रहे थे. आई डोंट थिंक आई शुड बी रिवीलिंग द क्वेश्चंस हियर, और मुझे याद भी नहीं होगा वो क्वेश्चंस बिकॉज इट्स बीन 2 years since then. But the idea is कि it was very like focused on practical things जो कि real world problems उनके साथ भी face हो रहे हैं, वैसे ही modify करके question पूछा गया था. And those were 3-4 rounds basically. एंड वो ऑफ कोर्स मैनेजरियल राउंड रहता है एक, जहाँ पे बिहेवियर लॉन्ग भी रहता है। एग्जैक्टली वो एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो होती हैं मैच की जाती हैं. बट या आई थिंक दैट्स हाउ द इंटरव्यू प्रोसेस वाज. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ सिक्योरिटी माइंडसेट एक इवैल्यूएट करने का राउंड, वेयर दे वर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कितना पहले से पता है अबाउट सिक्योरिटी, because since it's a security engineering profile, so they wanted to also understand कि do I understand security first of all, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे डाल तो दिया इस फील्ड में but I don't understand what I need to do. So couple of those things कि जैसे let's say as a developer I know I need to run sonar checks, like source code analysis एक चीज़ होती है जो मुझे करनी है to always keep my code in check. या फिर जैसे लॉग 4j वल्नरेबिलिटी आई थी तो उसके ऊपर लाइक देयर वाज सो मच क्योस अराउंड इट. तो हाउ डू यू रिजॉल्व दोज थिंग्स, लाइक लॉट ऑफ दोज थिंग्स ना कि आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो वो सब चीज़ें भी थी इंटरव्यू में. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक फिर फाइनली बेस्ड ऑन जो भी आंसर्स थे दे डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड विथ मी. एंड बट दिस इज हाउ द इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज इन जनरल, राइट. लाइक आपने में भी जैसे बताया कि आप भी हायर करते हो, तो आपका कैसा प्रोसेस रहता है या क्या देखते हो किसी कैंडिडेट में, क्या ये माइंडसेट से? तो आई थिंक हायरिंग जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो तो अर्बन लैडर इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था. बट प्रोफाइल्स चेंज होते गए. जैसे इनिशियली जब प्रोफाइल था तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकस ज़्यादा रहते थे, राइट. एंड अब जब मैं जेपीएमसी में आ गया तो मोर फोकस इज ऑन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, बिकॉज मेरा वही लाइन ऑफ बिजनेस है यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल्स. तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो तो अलग होंगे, बिकॉज जो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछेंगे प्रोफाइल से वो अलग रहेंगे देन सिक्योरिटी इंजीनियर. तो आई विल जस्ट टच बेस वेरी ब्रीफली ऑन वो कैसा प्रोसेस रहता है, बिकॉज आई कैन टेल यू फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ कि एज इंटरव्यूअर हाउ डू वी अप्रोच like let's say this entire hiring process, right, being a panelist in the interview. तो फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टेम्पलेट सा बन चुका है कि सब लोग वही लीड कोड में जो मीडियम हार्ड, देर आर सर्टन थिंग्स लाइक दैट which we definitely go through. And one of the things which I feel is why that is happening today also is कि वो जो पहला कट ऑफ पीपल होता है ना कि स्किम करने के लिए कि कौन कौन से लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ें तो आती है, तो वो वहाँ से हमें निकल जाए, वो फिल्टर आउट क्राइटेरिया एक कह सकते हो एक हिसाब से वो मिल जाता है. तो जो अब आगे चलते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में, या तो आप फिर से इनटू कोडिंग जाते हो जहाँ पे एक वाइट बोर्डिंग सेशन रहता है. अगर एक 101 कॉन्वर्जेशन हो रहा है जहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस जो पूरा है आपका ऑफिस में आके हो रहा है, तो एक वाइट बोर्डिंग सेशन रहता है जहाँ पे कि एक कैंडिडेट आके एक्सप्लेन करता है मे बी द सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम, मे नॉट बी द एंटायर प्रोग्राम सिंटैक्स का लिखना है उनको, बट अ सूडो कोड इज प्रेजेंटेड बाय देम, राइट. तो ऐसी चीज़ें राउंड्स में डेफिनेटली होती हैं. देन अदर स्पेसिफिक राउंड्स जो होते हैं वो होते हैं अराउंड कैसे आप एक डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन, एक डिज़ाइन प्रॉब्लम आप डाल दो. एंड द होल पॉइंट ऑफ इवेलुएटिंग द पर्सन इज कि अंडरस्टैंड कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं या नहीं. लेट्स से कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनानी है उनको, कोई भी हो, जैसे इमेज जनरेटर हो फ्रॉम पीएनजी टू जिफ, तो आप क्या सोचोगे उसमें. एक कंप्रेशन का एक सॉर्ट ऑफ एंगल रहता है उसमें, वो आप सोचोगे या नहीं. फिर हाउ सिक्योर योर सर्विस विल बी, कैसे आप इंश्योर करोगे वो चीज़ें, डेटाबेस रखोगे या नहीं, या फाइल्स यूज़ करोगे, मतलब बहुत सारी ये नुआंसेस आती हैं बीच में. एपीआई कैसा होगा, आप गेट यूज़ करोगे या पोस्ट यूज़, लाइक बहुत बेसिक्स भी हो सकते हैं. एंड इट कैन गो ऑन टू एनीथिंग, राइट. एक ओपन एंडेड क्वेश्चन सा आ जाता है आपके आगे, एंड यू गेट टू आंसर, यू गेट टू शो योर क्रिएटिविटी देयर कि आप कैसे इस आंसर को आप क्वेश्चन को आंसर करोगे. एंड यू विल ऐड स्पेसिफिक इंस्टेंसेस देयर, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट. अंडरस्टैंडिंग आप वो स्पेसिफिकेशंस कैसे लाओगे यहाँ पे, वो हम जानना चाहते हैं थ्रू दैट प्रोसेस. And a similar interview happens for the security engineer role also. And
again, I would say security engineer role, her profile will be different because within cybersecurity, there are so many domains. There is cyber operations, red team, blue team, SIEM solutions जो कि देखते हैं, GRC एक और डिफरेंट विंग है इस डोमेन्स चीज़ रहते का। हैं। बहुत डिफरेंट डोमेन्स रहते हैं, राइट? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये सब मुझे एक्सपोजर पिछले 2 साल में हुआ है व्हेन आई हैव जॉइंड द फर्म, राइट? क्योंकि अब जाके आई नो कि ये सब चीज़ें भी हैं विच आई वॉज वेरी मच ब्लाइंडेड टूवर्ड्स, राइट? मुझे लगता था कि बस एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज द ओनली थिंग, but it is much more beyond that. There is threat modeling, प्रोडक्ट सिक्योरिटी, मतलब पूरा एक जो जैसे आप एक AWS सर्विस स्टार्ट करते हो यूज करना, उस पूरे प्रोडक्ट की सिक्योरिटी टीम रहती है जो डिफाइन करते हैं कि कौन से कॉन्फ़िगरेशंस हम डालें टू मेक इट मोर सिक्योर फॉर अस टू यूज दैट प्रोडक्ट। तो काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस होता है, ये बहुत ही इजी जॉब नहीं है कि ले लिया कोई सर्विस और बस स्टार्ट कर लिया एट अ फर्म लाइक JP Morgan टू यूज दोज थिंग्स। तो काफ़ी एक स्क्रूटनी होती है हर चीज़ की। एंड फिर ऑडिट करके एक और विंग रहता है, जो टेक्निकल ऑडिटर्स होते हैं, वो भी एक जॉब कैटेगरी हो सकती है विद इन साइबर सिक्योरिटी बिकॉज दे ऑल्सो कीप ऑडिटिंग योर एप्लीकेशंस। और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड सिक्योरिटी में दूसरे से अलग है, ऐसा नहीं कि किसी को दैट इज करेक्ट, एग्जैक्टली। वो चीज़ आती हो स्पेशलाइज वो उस चीज़ में, और उसको दूसरी आती हो, ऐसा नहीं है। सब ऐसा अपने बिल्कुल नी भी नहीं है, हाँ, यस। अपनी अपनी चीज़ों नीश, में काफ़ी, हाँ, हाँ, जो नीश नीश जो है। स्किल सेट है इसमें चाहिए होता है। हाँ, एंड आई विल कोट हियर एक वेबसाइट जो कि काफ़ी यूजफुल है फॉर दिस। ये यूएस में एक मैंने देखा है एक वेबसाइट को, इट्स कॉल्ड साइबर सीक। जो साइबर सीक है वो एक नेशनल इनिशिएटिव फॉर साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन का इनिशिएटिव है। एंड इट्स अ प्रोग्राम फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी इन द US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च किया है which basically helps you identify कि given this security position, let's say analyst, आपको कौन कौन से skills चाहिए to be there, right, for that particular role. And similarly it maps to the certifications as well, कि अगर आप ये certification कर लो तो आप ये job के क्या पता you can apply for these kind of jobs. So that is a very good website. I'll recommend people to use that website. I just quoted that कि ये उनका एक initiative है, and that actually gives you some idea about कितनी different domains हो सकते हैं, कौन कौन से skill set will lead you to which position, and कौन कौन सी certifications also will help you crack some of those interviews, right? So just to go back to the kind of interviews I would handle in security engineering, that was more focused on building tools to ensure कि आपका application जो बन रहा है या जो आपके applications firm में हैं वो secure रहें। तो it was more of a tooling based kind of profiles which I was interested in, कि do people understand security at that level, कि आपको एक टूल बनाना है, सिक्योरिटी टूल बनाना है, तो हाउ वुड यू मेक सच टूल्स, right? And similarly some knowledge of cloud, some knowledge of any basic programming language like Java, Python was required there. तो पूरा आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो भी क्वेश्चंस थे उसी के अराउंड थे। ऐसे अगर कोडिंग भी हो गया रिलेटेड टू समथिंग स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी विच वी आर डूइंग डे इन एंड डे आउट, तो मैंने वही डोमेन को एक मैप कर दिया था इनटू अ क्वेश्चन कि अब लोग अप्रिशिएट कर सके कि यार ये तो लीड कोड प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये टू सम प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग एल्स। सो दैट helps people or helps individuals who are applying for these kind of jobs to appreciate ki where I am getting into, which company I am getting into, what kind of problems will I be solving day in and day out. So that is very important, I would say, from the employer's perspective also. If you are able to give that visibility to people right when they start applying for the jobs, like in terms of interview process, what is being handled generally. सो आप क्या लाइक कैसे डिफरेंशिएट करते हो, जैसे हायरिंग आप करते भी Hmm. हो और आपकी भी हायरिंग होती है, तो लाइक कभी कभी इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि रिलेटेबल नहीं है, Right. So और there उसको I वैसा ही आंसर चाहिए, आंसर भी उसको correct. अपने, उसको मतलब ईगो सेटिस्फाई करना है, तो वो वैसी चीज़ों को कैसे टैकल करे? करेक्ट। सो आई थिंक पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि यू वोंट, जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक इंसान को हर चीज़ तो नहीं आ सकती, तो आपको भी अपने लिमिट्स पता होने चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है जिसका आपको बस 1% ज्ञान हो, तो दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल।
प्रे टू, दो सिचुएशंस, कि उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बीच में डाल दिए, उनको लगा ये जार्गन्स हैं तो चलो यूज कर लेते हैं, बट वो इस चीज चक्कर में ये चीज भूल गए कि व्हाट इफ somebody asks you to further explain that particular word, right? Do you know that? तो वो चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे तो आई फील हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व देयर, वेयर जैसे मैंने बताया कि अगर आप उन टेक्नोलॉजीज का अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे जो आपको एक्चुअली पता है, that will be better, right? So I think there, if you have that upper hand to describe in the words you want to put that forth, that helps interviewer to also gain those things from you, right? Because it's a dialogue which is happening generally. वो भी सुन रहे होते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, because as an interviewer I also listen to what you are telling me in the interview, and based on that my next question comes up, right? So you have to be very mindful of that and rate yourself. One thing which I recommend people doing is when you are even writing your resumes, right? जो भी आप स्किल लिखते हो, आप उसको एक प्रोफिशिएंसी लेवल पे लिखिए, कि आपको वो इंटरमीडिएट आता है, बिगिनर लेवल आता है, कि ये आपको बिल्कुल एडवांस लेवल आता है, राइट? सो दैट हेल्प्स सेटिंग सम एक्सपेक्टेशंस विद द इंटरव्यूअर ऑल्सो। पता चल जाता है उनको कि इसका क्या पता, बस बेसिक्स क्लियर है इनको, एंड इनको आगे नहीं आती चीज़ें, तो विच इज़ फाइन, राइट? तो वो चीज़ है। सो जैसे कि आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से ही हो, तो लाइक कितना इम्पोर्टेंट है लैंग्वेजेस आना एज अ सिक्योरिटी पर्सन, और कितना रेलिवेंट है और सिक्योरिटी के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में ये, लाइक मुझे नहीं करेक्ट। लगता कि सारे डोमेन्स में राइट। कोडिंग नॉलेज इम्पोर्टेंट है, बट एज लाइक एक सिक्योर कोडिंग, वहाँ तो राइट। एज अ सिक्योरिटी में आपको कोडिंग आनी चाहिए, बट और में करेक्ट। नीड नहीं है। तो आप क्या करेक्ट। सजेशन दोगे कि सबको कोडिंग करनी चाहिए, या फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है कुछ? राइट, नो आई डेफिनेटली फील कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कोड की होनी चाहिए सबको, बिकॉज जब आप अटैक्स की बात करें या आप रेड टीम ब्लू टीम की बात करें, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वनरेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही होगी ना। तो वो एक बेसिक अगर सबको आ जाए ना, बिकॉज वो फंडामेंटल है, उसके बाद आप अपना स्विच गियर कर सकते हैं। जैसे क्या पता आपको जीआरसी के लिए कोडिंग नहीं चाहिए, ऐसा लाइक दिस इज अ मिथ बेसिकली, आई वुड से, रादर दैन सेइंग कि नेसेसिटी वर्सेस हैविंग सम नॉलेज, लेट्स हैव दैट बेसिक नॉलेज अबाउट कोडिंग। क्योंकि कुछ ना कुछ ऑटोमेशन, कुछ ना कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कोई ना कोई चीज़, वो वेपन आपके पास होता ही है, विच यू कैन यूज वेन एवर यू नो एनी वन लैंग्वेज, राइट? सो इट इज़ गुड फॉर यू, and at the same time it helps you appreciate each and every person in this role, right? And makes you perform a calculated decision कि which space do you want to be a part of, right? तो अगर वो basic understanding आप रखते हैं, more than enough. ओके। सो करंट में आपको क्या लगता है कि कौन सी लैंग्वेज किसी को, बिगिनर्स को सीखनी चाहिए, या इजी टू लर्न है, या फिर मार्केट में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का ज़्यादा बूम चल रहा है? मेरे हिसाब से लीस्ट प्रेफरेंस इज कि एक लैंग्वेज पकड़ो, कोई एक। मैं वो कभी भी आंसर नहीं करता हूँ ऐसी चीज़ें, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आपको एक लैंग्वेज आ जाए, आपको दूसरी लैंग्वेज भी आ जाएगी पिकअप करना। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटली कभी ना कभी डिफरेंट होंगे, जैसे सी इज़ वेरी डिफरेंट देन जावा, बट कहीं ना कहीं आप वो ग्रास्प कर सकते हैं। और वो आपको कंप्यूटर साइंस, अगर आपका बैचलर्स में रहा होगा कोर्स, तो आपने वो चीज़ें वहाँ पढ़ ली होंगी, तो आपको वो इजीली स्विच करना, गियर्स आ जाना चाहिए। बट फ्रॉम द सिंटैक्स पर्सपेक्टिव आई वुड से कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल हार्ड कोड वो सिंटैक्स याद रहना चाहिए आपके दिमाग में। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ लर्निंग। कोई एक लैंग्वेज आप पिक कर लो जिसमें आप कोड कंफर्टेबली कर सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। फिर बाकी सब आप सीख सकते हैं। जैसे पाइथन सीख लिया आपने, आप जावा भी सीख सकते हैं, जावा सीख ली, पाइथन भी सीख सकते हैं। सो एज अ बिगनर, या फिर कोई किसी भी पर्सन को, मतलब लाइक प्रोडक्ट्स कंपनी में जाना हम्म। चाहिए, सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए, या स्टार्टअप पे जाना चाहिए, और कितना हाँ। लर्निंग कर्व रहता है, या फिर कैसे करेक्ट। माइंडसेट होता है डिफरेंट डिफरेंट करेक्ट। कंपनीज का? या ये भी एक काफी अच्छा सवाल है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच ऑफ्टन टाइम्स पीपल दे आर इन क्वेश्चनेबल स्टेट कि यार वेयर शुड आई गो नेक्स्ट। तो आई थिंक एवरीथिंग हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स। जैसे अगर आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में जाते हैं,
तो उनका एक प्रोसेस रहता है, बिकॉज दे हैव सीन दिस ओवर द ईयर्स इवॉल्व। तो उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहेगा, उनका एक प्रॉपर इंडक्शन प्रोसेस रहेगा फॉर मे बी 3 मंथ्स या 1 मंथ, जो भी रहेगा वो टाइम पीरियड। तो दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द nitty-gritties of different things, right? Similarly, they may also tell you to do some certifications, which they find ki yaar, this is something, if you do it, this will help you with your day job going लाइक forward. कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट उनको ट्रेन करते हैं वो। और ये मॉड्यूल्स भी जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं विथ टाइम, बिकॉज जैसे आज की डेट में अगर फिशिंग करके एक मॉड्यूल है, तो कल को अब एक एआई का भी एक तो मॉड्यूल आना चाहिए ना, कि हाउ डू यू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दोज अटैक्स। तो काइंड ऑफ दोज थिंग्स, तो दिस इज वेरी मच यू सी इन अ बिग एस्टैब्लिश्ड कंपनी, बिकॉज वहाँ पे कब से चले आ रहा है ये चीज़, राइट? तो उनको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इजीली हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर एक स्टार्टअप रहेगी, तो वहाँ पे चैलेंजेस अलग होंगे। क्या पता वहाँ पे इतना एस्टैब्लिश प्रोसेस ना हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द स्टार्टअप ऑल्सो। काफ़ी टीम्स, काफ़ी स्टार्टअप्स मैंने मच्योर भी देखी हैं, कि जो जल्दी मच्योर हो गए हैं, दे नो अबाउट दीज थिंग्स। एंड इट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा फील्ड का स्टार्टअप है। लेट्स से अगर आपका फील्ड ही साइबर सिक्योरिटी है, तो उनका तो फोकस ही वो रहेगा, राइट? चाहे वो स्टार्टअप हो ना हो, तो उनका फोकस वही रहेगा। बट अगर आपका ई कॉमर्स करके कुछ स्टार्टअप है, तो क्या पता उधर ट्राजेक्ट्री ऑफ अ सिक्योरिटी इंजीनियर मे बी लिटिल डिफरेंट दैन अ पर्सन इन साइबर सिक्योरिटी। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टार्टअप, आई वुड से, कि कौन से स्टार्टअप में आप जा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा जनरली एक माना जाता है कि स्टार्टअप्स में अगर आप जाएंगे, लर्निंग कर्व विल बी मच, बिकॉज लोग कम रहते हैं, तो यू गेट टू ओन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उससे आपकी लर्निंग जो होती है एक्सपोनेंशियल हो जाती है। बट सेम आप कह सकते हैं कि बड़ी कंपनीज में भी, बिकॉज जो बड़ी कंपनीज होती हैं, दे इंटरनली वर्क एज स्टार्टअप्स, अ लॉट ऑफ देम, राइट? कि जहाँ पे स्मॉल स्मॉल जो ये पॉड्स बन जाते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ टीम्स बन जाते हैं, दे कोलैबोरेट, दे वर्क अमंग देमसेल्व्स टू बिल्ड आउट समथिंग। तो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे सेम ही होगा। बट मे बी द इनिशियल जो राइड होगी, क्या पता वो कभी बहुत ही स्मूथ होगी किसी के लिए, या किसी के लिए वो बम्पी भी होगी। तो इट डिपेंड्स, आई वुड से। बट दोनों में जाने का अपना ही एक एक्साइटमेंट रहेगा, एंड अपना ही एक लर्निंग कर्व रहेगा, विच यू विल एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप 4-5 साल के बाद देखोगे, आपको लगेगा कि यार ये तो सिमिलर ही है, मोर और लेस। मोस्ट कंपनी लाइक जो साइबर सिक्योरिटी की नहीं है वो लाइक मोस्टली अपना कंप्लायंस मीट करने के लिए सिक्योरिटी रखती हैं, जो हम्म। भी डेली डे टू डे उनके नॉर्मल टास्क हैं वो परफॉर्म करने के लिए करेक्ट। रखती हैं। हम्म। बट जो कोर है वो मोर फोकस रहती है कि। Correct. That plus I also think with the advent of cloud, right? I think cloud सब लोग यूज करते हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी का एंगल तो आ ही जाता है। और ये बेसिक सिक्योरिटी तो हम डेवलपमेंट में भी करते हैं, जैसे एपीआई सिक्योरिटी की बात हो, टीएलएस की यूजेज हो, ये सब तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट? एपीआई सिक्योरिटी। और आई हैव सीन इन द पास्ट कि सब कंपनीज में ना एक सिक्योरिटी टीम रहती है, तो which basically sits in between, let's say in startups generally, कि वो before you architect the system, before you deploy the systems, वो आर्किटेक्चर राउंड में जब आपका आर्किटेक्चर डिसाइड हो रहा होता है कि आप ऐसा आर्किटेक्चर प्रपोज कर रहे हो, दे सिट इन बिटवीन दैट लेयर, दे डू इवेलुएट योर डिज़ाइंस। और ये एक प्रोसेस है, ये एस्टैब्लिश कंपनीज में भी होता है, जहाँ आपको अपना डिज़ाइन जो है, प्रपोज डिज़ाइन, वो सबमिट करना पड़ता है फॉर अ रिव्यू। वो पैनल बैठता है, एंड दे डिसाइड कि इज दिस सिक्योर इनफ, राइट? तो वो एक चीज़ होती है, डेफिनेटली होती है। एंड देन यू गेट अ फाइनल गो और अ नो गो टू डिप्लॉय दैट इन प्रोडक्शन, तो फिर डेवलपमेंट एफर्ट स्टार्ट होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी बीइंग अ आफ्टर थॉट, वो नहीं होता है, मेजॉरिटी टाइम्स वो नहीं होता है। तो इट इज एम्बेडेड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑल्सो। इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी कैसे वो प्रोसेसेस होते हैं, बट इट हैपन्स फॉर श्योर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे देख रहे हो कि लाइक आजकल लोग हाइब्रिड मोड पे भी काम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर रहे हैं, तो लाइक एज अ बिग सिटी जहाँ पे ट्रैवलिंग इतना टाइम कंज्यूम कर रही है, तो वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे आप मैटर करते हो इन टूडेज वर्ल्ड? राइट।
तो ये एक ऐसा चीज है कि इमेजिन योर फर्स्ट जॉब इन यूएस विच इज योर फुल टाइम जॉब and the next day lockdown starts, right? That's what I have faced. But I think एक प्रो कॉन तो रहता है। जो आप बोल रहे हैं कि हाइब्रिड है या फिर रिमोट वर्क है कंप्लीटली, या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, जो वो इन पर्सन इंटरेक्शंस होती है ना, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एनर्जी लेवल compared to what you have generally on Zoom calls, right? या फिर जनरली चैट्स में भी जो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप एक हॉलवे कॉन्वर्जेशन में पूछ सकते हैं अपने टीममेट को, नाउ यू हैव टू सेंड देम अ पिंग एंड वेट फॉर अ रिप्लाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वन थिंग इज बेटर देन द अदर, बट इट इज़ हाउ वी इवॉल्व्ड। वी हैव एक्सेप्टेड टू द एवोल्यूशन कि वी कैन वर्क विच एवर वे वी कैन, बट एक प्रेफरेंस हमेशा रहता ही है। तो if not every time in the office, we can meet once in the office and have that conversation 101. But this time period has definitely taught us that remote work is very much possible. And but given the remote work, given hybrid work, you need to prioritize yourself. When do you take that time out? When do you clock out, clock in? That is very important, right? अब ऐसा तो नहीं होगा कि देयर इज अ कस्टमर कॉल या जो भी इंसिडेंट आप एक रिस्पॉन्ड कर रहे हो फॉर एग्जांपल, एंड यू जस्ट क्लॉक आउट दैट टाइम। ऑफ कोर्स, चाहे उस टाइम आप इन पर्सन भी ऑफिस में जा रहे होते या कहीं पे भी होते, दैट विल बी योर utmost priority to help a customer out in a problem, right? तो वो सारी चीज़ें will still hold true. But apart from that, you need to set a schedule for yourself. There was a proper actually training given when people started moving like from in person to remote sort of a model, right? तब एक ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे, बिकॉज कुछ लोग तो पहले से करते आ रहे हैं ये रिमोट वर्क, उनके लिए नया नहीं है। मतलब 20 साल पहले जब वो इंडक्ट हुए थे कंपनी में, दैट टाइम दे स्टार्टेड वर्किंग रिमोटली। बहुत लोग ऐसे थे। तो उनके एग्जाम्पल्स ले लेके उनका ये बता के ना स्टोरी कि कैसे वो लोग अपना टाइम करते हैं, लाइक दे हैव स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स कि जैसे अभी से अभी आई विल वर्क, देन आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल प्रॉब्ली हैव फूड, वॉट एवर दैट इज। तो काइंड ऑफ सेटिंग अ स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ इज इक्वली इम्पोर्टेंट, आई वुड से, राइट? तो वो जब तक आप वो मीट कर पा रहे हो, जब तक आपको आप अवेयर हो कि कब मुझे क्लॉक इन क्लॉक आउट करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी फ्रूटफुल ओनली व्हेन यू कैन अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम द सिस्टम। अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहे, दैट्स नॉट फ्रूटफुल एट ऑल, दैट डजंट हेल्प, राइट? सो दैट needs to be known to people. When they are self aware, they'll know when to just plug out and do some activity, be it gymming, be it gardening, be it anything, right, which helps them unplug for time being. Cooking for that matter, cooking is a basic skill which I feel everyone should know। मतलब जो भी एटलीस्ट, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास्टर्स करने आ रहे हो यूएस तब कर लो, इवन इफ यूर इन इंडिया, दैट इज अ बेसिक सर्वाइवल स्किल, कि वो बेसिक स्किल आपको आनी चाहिए करनी, एवरीबडी, राइट? एवरीबडी। सो काइंड ऑफ दोज थिंग्स हेल्प यू ऑल्सो टेक टाइम आउट ऑफ द स्क्रीन एंड इन्वेस्ट दैट टाइम समवेयर एल्स ये इन कुकिंग योर भी एक पर्सन। लाइक इंडिपेंडेंट फील कराती है। नॉट राइट, सब लोग को एब्सोल्युटली। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक दिखता है कि इंडिपेंडेंट, तो वो फाइनेंशियली टर्म्स में बोल रहे होते हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से खुद के लिए करनी आनी चाहिए, तो उससे भी करेक्ट, आप फील इंडिपेंडेंट। करेक्ट, दैट इज ट्रू। एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू मोर ऑफ दैट डिस्कशन, बिकॉज ऐसे तीन चार चीजें हैं जो मेरे को बेसिकली लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को आनी चाहिए टू सम एक्सटेंट और द अदर, लाइक स्विमिंग, रनिंग, ड्राइविंग एंड कुकिंग। Like these are like 4 5 basic things which I feel every individual should at least be able to do that, right? So because these are life skills in one way or the other. So, but yeah, I think this is going in another tangent, but I just thought let me just convey these few कोई, things. मेरे को तो अवेयरनेस भी, लोगों को अवेयर होना चाहिए चीज़ों को, मतलब ऐसे नहीं कि बाहर निकले तो एकदम ब्लैकआउट हो गए, ये मतलब Right, कुछ नहीं है। सो right, right, कितना वर्क कल्चर डिफरेंट है इंडिया से? आपने इंडिया में भी काम किया और यूएस में भी काम कर ही रहे हैं, तो कितना डिफरेंट है वर्क कल्चर दोनों जगह? right. So I don't find much difference, to be very honest with you. Because like there are different factors, right? जब मैंने इंडिया में काम किया था, तो the concept of let's say work from home, I was able to execute that even in India. A lot of people may say differently that वो concept था ही नहीं कभी, वगैरह वगैरह, right?
but I never saw those things in India. And same goes with the so one thing which I really like about the organizations where I've worked throughout is taking feedback from employees. Like we were never not allowed to express ourselves, right? So I think that has helped me throughout to see that there is no difference actually between the companies there or in US. तो वैसा कोई मुझे खास डिफरेंस तो मुझे नहीं दिखता है. Yeah, that's what I would tell, because even there, like जो आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, that was easily met. तो जो आपके वर्किंग आवर्स आप डिसाइड कर सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे इंडिया में भी. वैसा मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो था, एटलीस्ट इट वुड सपोर्ट दैट autonomy for me. And that the same thing I can see in US as well. So as long as those things are the same, I don't see any other distinguishing factor which has changed my experience working across the continents basically. सो एवरेज सैलरी क्या रहती है यूएस में एज अ, अब इंडिया से कंपेयर करें तो, किसी भी रोल या Right. फिर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने एक्सपीरियंस पे इतनी सैलरी स्टैंडर्ड है? राइट, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बट इसमें एक चीज़ है कि यूएस का जो सैलरी स्ट्रक्चर है दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वेल. जैसे कई बार जॉब डिस्क्रिप्शंस अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क की एक अलग से सैलरी लिखी होगी, कैलिफोर्निया की अलग से सैलरी लिखी होगी. तो उसका मेन रीज़न ये है कि टैक्सेशन लिविंग, भी अलग से. हाँ हाँ, लिविंग लिविंग एक्सपेंस। लिविंग तो है ही, और टैक्सेस भी उसी हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में अलग तरीके से कंप्यूट होते हैं. तो ये कहना कि बट स्टिल देयर इज स्टिल एन एवरेज एस्टिमेट विच यू कैन गेट. तो एक वेबसाइट है लेवल्स डॉट एफ आई आई करके. तो दैट इज़ अ गुड वेबसाइट विच गिव्स यू एन आइडिया, रफ आइडिया ऑफ कि ये पोजीशन अगर हम डालें व्हाट इज़ द एवरेज. तो मे बी लाइक एंट्री लेवल के लिए इट कैन बी बिटवीन 90K टू 130K. एक मतलब एक स्पेक्ट्रम सा है, बिकॉज एज आई सेड कि वो स्टेट पे डिपेंड करता है, राइट? फिर विथ मोर एक्सपीरियंस दैट रेंज विल शिफ्ट फर्दर, राइट? जैसे अगर आपके पास 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो यू आर कमिंग इन अ मिड रेंज समवेयर. तो दैट विल शिफ्ट टू समथिंग मोर, मे बी टिल 190K और समथिंग. ऐसे करके देर इज अ रेंज फॉर सैलरीज. And that is how it is different than India, because India में you don't have like state wise अलग अलग salary. I am not aware कि कुछ recently change हुआ है नहीं क्या नहीं वहाँ नहीं, पे, इंडिया में तो अक्रॉस right? इंडिया सेम टैक्सेशंस Pan हैं India. यूएस। हाँ यूएस की तरह नहीं, जहाँ की अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं और Correct, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। लाइक कुछ कुछ correct, सिटीज़ तो उस हिसाब से लिविंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग लोग सैलरी देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए इंडिया में भी। लाइक बैंगलोर, दिल्ली, जितने भी बिग सिटीज़ हैं correct, वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू right. आप कहीं So, और। but one thing which I've seen is what people also do is कि let's say they're coming from a company with some experience. Of course, they'll have some expectations salary के लिए, right? तो this works in two ways. पहला तो एक general आप estimate तो बना दो कि what that company can go up to. लाइक एक कंपनी का भी एक थ्रेशोल्ड होता है ना, कि अगर आप बिल्कुल ही आप बता दो कि 85% जंप चाहिए या कुछ चाहिए, वो ऐसा ऐसा होता नहीं है. इट्स नॉट वेरी रियल कि आपको बोल देंगे कि चलो हाँ ठीक है वी एक्सेप्ट इट. तो रिक्वेस्ट जो आप करते भी हो ना, दैट हैज़ टू बी इन अ सर्टेन मैग्नीट्यूड. तो दैट्स वेयर योर कैलकुलेटिव माइंड शुड कम इन एंड से कि यार मैं कितना परसेंटेज रेज मांगू इफ लेट्स से आई एम स्विचिंग कंपनीज ऑल्सो. इट शुडंट बी समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, राइट? तो वो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स नेगोशिएशन आपका हक है. वो तो वो लोग भी आपको बोलेंगे जो आपके रिक्रूटर्स इन टच होंगे, दे विल टेल यू इफ यू वांट टू टॉक अबाउट रिवाइजिंग योर सैलरी, you can do that. So you should basically understand कि expectation क्या है कंपनी की भी from you. Based on that you can place a ballpark estimate there, लाइक is what I would आपने recommend. आप भी हायरिंग करते हो तो नेगोशिएशन वाला पार्ट जो रहता है, लाइक एक कंपनी का बजट भी होता होगा कि इस रेंज में हम अफोर्ड Exactly. कर सकते हैं। तो That's why I said कि बिल्कुल आप ऐसा नंबर ना बोल दो कि फिर दूसरा बंदा बोल दे कि नहीं we won't accept that, right? तो एक अवेयरनेस जो कि आप थ्रू वेबसाइट्स जैसे मैंने levels.fyi का नाम बताया कि आप लाइक वो उससे मेरे अगर हिसाब आप से तो जॉब पोर्टल है, लेवल्स वाई एफ। नहीं, levels.fyi में आपको पोजीशन वाइज सैलरी का भी एक एस्टिमेट नहीं दिखाता है. हाँ वो तो है,
बट वो हाँ। मैं उसको जॉब पोर्टल्स कंसीडर करता हूँ। ओह, ओके। ओके, आई सी। जैसे L3, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम्म। देयर इज अ टर्म लाइक L3, L4, L5 हो गया, वैसे ही सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 1 2, टू एनालिस्ट थ्री 1 2, ये सब चीज़ें रहती है ना। तो देयर इज, एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर, क्योंकि क्या होता है ना, हर कंपनीज के डेजिग्नेशंस अलग होते हैं। जैसे SDE 5, सॉरी, SDE 2 इज अ टर्म विच इज़ यूज इन Amazon, बट यहाँ उसको L5 भी बोला जाता है। बट मे बी गूगल में कुछ और टर्म होगा, देन JP मॉर्गन चेज में वो टर्म कुछ और होगा, बिकॉज यहाँ पे हम बात करते हैं एसोसिएट, वाइस प्रेसिडेंट, लाइक काफ़ी अलग चीज़ें रहती हैं, राइट। तो दैट गिव्स यू एन आइडिया टू कंपेयर कंपनी टू कंपनी ऑल्सो, कि अगर आप इस कंपनी में इस पोजीशन पे हैं तो आप कौन सी पोजीशन पे उस दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, राइट। तो ऐसा एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना आप सेट कर रहे हैं किसी के लिए, ना आप एक वैल्यू ऐसा कोट कर रहे हैं कि दूसरों को लगे कि भाई दिस पर्सन डजंट नो एनीथिंग, राइट। तो वैसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। नहीं, मोस्टली मेरे हिसाब से स्टार्टअप ज़्यादा पे करते हैं एज अ बिग टेक जायंट। स्टार्टअप काफ़ी आई सी। हाईली पे करते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। मे बी इन इंडिया, आई वुड से, क्योंकि इंडिया में मैंने स्टार्टअप में काम किया है, यूएस में तो मेरा एक्सपीरियंस है नहीं स्टार्टअप्स में, तो इंडिया में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। बट यूएस का मुझे उतना आइडिया नहीं है कि स्टार्टअप्स डू दे पे दैट वेल। बट या आई थिंक अगेन एट द एंड ऑफ द डे, पे इज समथिंग विच ट्रांसलेट्स टू वॉट यू कैन ब्रिंग टू द स्टेज, राइट। लाइक अगर आपके पास कुछ स्किल सेट है, अगर आप आप क्या वो टेबल्स। चीज़ें हैं, एग्जैक्टली, इफ़ यू आर डिजर्वेबल, आप डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेटली। सो आज के लाइक एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है साइबर सिक्योरिटी को, आप अपना कुछ व्यू पॉइंट दे सकें तो। हाँ, ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक है विच आई फील, क्योंकि सब लोग आजकल एआई की ओर दौड़ रहे हैं, एंड व्हाट आई फील इज डेफिनेटली इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चाहे आप ये कह लीजिए कि एआई, वी आर डिपेंडेंट ऑन एआई फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी असिस्टेंट्स हो गए या फिर कुछ भी हो, so it has become somewhere part of our lives. Now, on the other hand, we have also seen an increased amount of cyber attacks, and a lot of speculation is around कि ये AI के through ही attacks भी हो रहे हैं। And why that speculation? Because hackers का तो एक पैटर्न है, जो मैं चीज़ बता रहा था कैप्चर द फ्लैग के बारे में, राइट, कि कैसे आपको एक ऑटोमेट करना है अपना अटैक। तो अब थ्रू एआई या थ्रू दीज मॉडल्स, पीपल हैव आइडेंटिफाइड द वेक्टर्स, जो अटैक वेक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो उनको बस अब वो रन करने अक्रॉस डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो उनका ऑटोमेशन वहाँ पे हो चुका है। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्वेस्ट इन डिफेंसिव सॉल्यूशंस एज वेल, राइट। क्योंकि अगर अटैकर्स एआई यूज कर रहे हैं, तो हमें भी तो, ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो एनालाइज करने के लिए या फिर टू ऐड डिफेंसिव लेयर एआई यूज करना ही करना है। तो काइंड ऑफ इट इज गोइंग बोथ द डायरेक्शन से, राइट। एंड यूजेज ऑफ एआई इटसेल्फ is a security threat, first of all. Like there are a lot of blogs actually, or a lot of information out there on internet which talks about how there will be more risks when we think about AI entering the field, right? So I think it's important for all of us, because at the end of the day, I feel it's more of a community thing, where you know how zero-day attacks work. Like no matter how much secure your application is, you won't know what will happen, right? Because zero day का मतलब ही वो है आपको पता कि नहीं है कुछ भी। एग्जैक्टली वहाँ पे एक कम्युनिटी एफर्ट आता है, क्योंकि जब कम्युनिटीज साथ में बैठती हैं, जब ये बड़ी कॉरपोरेट्स ऑर्गेनाइजेशन साथ में बैठते हैं, दे डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, एंड उससे क्या होता है, नॉलेज ट्रांसफर होता है कि हमने ये करा है, वो करा है, एंड इट्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट विच हेल्प्स देयर। So I think, yeah, more people, more companies are investing in AI, and we'll definitely see some more things in near future, I would say, where a lot of these cybersecurity solutions are powered by AI. सो लाइक आप किसी को बताना चाहेंगे लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी फील्ड में भी बहुत ऐसे डोमेन्स हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और Hmm. उसमें बहुत सारा ग्रोथ है, तो आप सजेस्ट Right. करना चाहें कुछ।
हाँ श्योर, ये हमने थोड़ा बहुत पहले भी बात करी, जहाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट साइबर ऑप्स बीइंग वन अदर पिलर, या ऑडिट बीइंग वन अदर। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट ऑडिट के थ्रू भी लोग सिक्योरिटी में आ सकते हैं। And GRC being one, which is governance, risk and compliance. Then we have SIEM solution analysts, which actually do the Splunk जैसे करके एक सिस्टम है, उन पे वो लॉग्स मॉनिटर करते हैं, लाइक लॉट ऑफ दीज थिंग्स, राइट? देन रेड टीम, ब्लू टीम, ऑफ कोर्स दीज नहीं, थिंग्स आर लेसर देयर, नोन लाइक डोमेन्स इन सिक्योरिटी लाइक राइट? जीआरसी और ऑडिटिंग तो है ही, लोगों को मोस्टली नहीं पता ओके, है। तो आई मोस्टली थिंक ऑडिट ऑडिट करके जो है उस पर मैं अगर फोकस करूँ तो इट्स अ वेरी, लाइक अगर देखा जाए ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फील्ड है। बिकॉज होता क्या है कि लेट्स से आपकी एक एप्लीकेशन है, तो आपको एक अटैकर के माइंडसेट से वो देखना है कि व्हाट आर दी लूप होल्स इन योर एप्लीकेशन। क्योंकि एक एप्लीकेशन के काफ़ी टच पॉइंट्स रहेंगे, काफ़ी प्लगइन्स रहेंगे, तो कहाँ कहाँ पे वो ब्रेकेज पॉसिबल है, कहाँ कहाँ लूप होल्स पॉसिबल है, वो देखने का रहता है उसमें, राइट? तो आई थिंक ऑडिट जब करते हैं, इट्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच दे आस्क, राइट? एंड देन जो रिस्पेक्टिव टीम होती है, जो वो जिन्होंने आर्किटेक्चर दिया होता है, दे गेट टू डिफेंड या दे गेट टू टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एक्सरसाइज विच इज फ्यूटाइल फॉर बोथ or for the entire organization, because now you are ensuring that there is no bias in your architecture. जो आप सिक्योरिटी टूलिंग भी बना रहे हो, इट्स बायस फ्री। कब बहुत बार ऐसा होता है ना कि इट्स योर थिंग, योर प्रोजेक्ट, यू बी बायस टुवर्ड्स इट। तो एक एक्सटर्नल का वहाँ होना, आप ही एक बना रहे फुल हो, सेट आप ही ऑफ आइज, एग्जैक्टली इवेलुएट कर रहे हो। एग्जैक्टली द पॉइंट, हाँ। तो एक्सटर्नल सेट ऑफ आइज का वहाँ रहना इज रियली इंपॉर्टेंट इन दैट वे, and it gives you that insights to little bit go further and deep dive into your own decisions what you had taken in the past. Maybe it is as simple as answering them back with an answer which is already ready, but a lot of times ऐसा भी होता है कि there are some questions which maybe you have not thought through completely. So that gives you opportunity to build upon your systems and, you know, embed those things also as part of your architecture. डिफरेंट परसेप्शंस आपको Correct. मिलते हैं। करेक्ट, एंड उसमें भी अपना एक ग्रोथ रहता है, जो आप ऑडिट के थ्रू अगर आप आएंगे उसमें भी एक ग्रोथ सेट रहता है कि मे बी इनिशियली यू विल बी यू नो बिगिनर देयर, देन यू विल बी इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड लेवल। और जो अगर आप साइबर सीक पोर्टल पर जाएंगे, इट विल शो यू ऑल दो सर्टिफिकेशन विच विल हेल्प यू रीच डिफरेंट लेवल्स। एंड ऑडिट में भी अलग अलग तरीके आएंगे, लाइक कोई सिर्फ क्लाउड सिक्योरिटी का ऑडिट करेगा, कोई ऑन प्रेम जो होते हैं आपके एप्लीकेशन उनका करेगा, या कोई हार्डवेयर का करेगा। लाइक देयर इज सो मच टू इट, राइट? सो देयर इज, लाइक अगर कोई सोच रहा है कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई फील देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज राइट देयर, एंड पीपल जस्ट नीड टू हार्नेस बेस्ड ऑन व्हाट ओके, पोटेंशियल दे हैव। ओके। तो वो ज़रूरी है। सो आपने कौन कौन सी टॉक्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी, और कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी के भी करियर में इन चीज़ों को पार्ट लेना? तो आई थिंक कॉन्फ्रेंसेस जो है, दैट्स अ रियली ग्रेट वे टू कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल। बिकॉज आप ऐसे ही यूं ही कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे। you would look into ki what is the conference offering you, and whether it is beneficial for you to attend the conference as well. So in that regards, like right from my undergrad, so where my final project, we were able to publish a paper. That was the first conference I ever attended in India, which was the international conference of some cloud computing. It's called ICACCI. I don't know on top of my head the entire full form for that, but that was held. It was the third annual conference that time, maybe, and it was held in Jaipur, where a lot of technologists from maybe research background or different organizations, they were part of the conference. And the presentation format was also very different, right? Like there are some papers which are like in more of an elaborate format, they talk about their paper, or then there are presentations that are like roadshow, where you have a poster session, and आप वहाँ जाते हैं, और जो भी आएंगे आपसे बात करने के लिए आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या प्रोजेक्ट करा है एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? सो एक लेक्चर ट्रैक रहता है और एक नॉर्मल जैसे पोस्टर सेशन ट्रैक रहता है। तो इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर, जो कि इंटरनेशनली भी आए थे, लोकली भी तो थे ही वहाँ पे, और इंडिया से भी काफ़ी लोग आए थे। तो एक जो कनेक्शंस बनते हैं वहाँ पे, और अपने टीम के साथ वहाँ जाना एज अ फर्स्ट थिंग, लाइक
soon after we graduated. That was a very good experience, right? Right after the college. तो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम पे टू गेट इन टच विथ लाइक माइंडेड पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी. So that is the first conference which I attended. And then I also, with my team, we worked on a research project into data science. It was mostly into social media mining, where we published a publication which is indexed in IGCAII. एंड दैट वन हम गए नहीं थे कॉन्फ्रेंस में, बट हमारा जो PhD मेंटोर था, ही अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस एंड वी वर जस्ट हेल्पिंग हिम थ्रू आउट, एंड वी आर ऑल्सो दी सेकेंडरी ऑथर्स देयर ऑन द पेपर. तो वो वाला भी काफ़ी एक अलग ही फॉर्मेट था, क्योंकि वहाँ हमें अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना था एंड यूट्यूब पे पब्लिश करके देन दे प्लेड दैट वीडियो इन द सेशन बिकॉज वी कुडंट गो on that particular day, but it was a different experience. I think at the end of the day क्या लगता है कि ये वाले जो कॉन्फ्रेंसेस थे ना, यहाँ हमने कुछ पब्लिश करा था बेसिकली. It was more of a content which we submitted, and जो बहुत जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं, वो लोग आपका काम रिव्यू करते हैं. दे अप्रूव द कंटेंट एंड फाइनली इट गेट्स इंडेक्स्ड इन IEEE या जो भी पब्लिकेशन होती है, वहाँ पे एक इंडेक्स हो जाती है ये चीज़ें, राइट? तो ये वो फॉर्मेट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी. देन आई हैव ऑल्सो अटेंडेड कॉन्फ्रेंसेज लाइक एक ओपन सर्च कॉन्फ्रेंस था जो कि सियाटल में हुआ था. इट वाज द फर्स्ट ओपन सर्च कॉन्फ्रेंस, राइट? तो तब मैं ओपन सर्च टीम AWS की उसमें काम कर रहा था, एंड वी अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस. दैट उधर क्या था कि काफ़ी जो कस्टमर्स थे, जो ओपन सर्च प्रोडक्ट के कस्टमर्स थे, वो लोग आए हुए थे. तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ थी, बिकॉज वो अपना यूज़ केस प्रेजेंट कर रहे थे कि कैसे ओपन सर्च उन्होंने अपनी कंपनी में यूज़ करा है, राइट? सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ conference where we got together and we spoke about different use cases, and there were definitely talks from the open source team as well, because we were the host, and we were giving some talks on different features which we just made live in a couple of recent months. And that was a very different conference, right, to attend. And then comes to the other conference, which very recently I've attended. It's called ShmooCon. It's a very similar concept of DEF CON. Like DEF CON happens on the West Coast in US. This one happens in the East Coast. It's in Washington, DC. And next year will be the last ShmooCon, which will be ever organized. I think they completed 21 plus years or something on that lines. But the idea is यहाँ पे majority cybersecurity people, they show up to this conference around the world, right? And one of the very interesting things about the conference was LobbyCon, which means कि जैसे अगर आप एक individual हो as a student who is probably doing masters in cybersecurity, you may not have that much, let's say, money to buy a ticket and be in the conference. So what this conference does, it always hosts something called LobbyCons, जहाँ पे in the hotel lobby where the conference is held, all these people just come up there, and whoever, let's say you don't have a pass, you don't have anything, if you just want to talk about anything cybersecurity related to somebody, you can just meet them in the that hallway, right? So that was a very different concept altogether, which they do here in ShmooCon. एंड ऑफ कोर्स देयर वर ट्रैक्स, लाइक जो स्पीकर्स होते हैं इस इवेंट पे, उनके अपने ट्रैक्स थे. सो आई वाज बीइंग सेंट देयर बाय माय ऑर्गेनाइजेशन, बाय JPMC, एंड आई वाज मेनली देयर टू एब्जॉर्ब द कंटेंट कि व्हाट इज द रीसेंट थिंग्स पीपल आर वर्किंग ऑन अक्रॉस द इंडस्ट्री, and how can I take back those learnings and then apply it somewhere in my space as well, right? So that was the whole point. Again, the our takeaway from those conferences is always to connect to people, to understand the shared responsibility in ensuring the security is, the worldwide thing. And it's not an afterthought again, because this is very much prevalent with every security enthusiast you meet. This is same thing which they'll tell you, right? And lastly, which is the very recent conference, which is the invite only conference, which is internal to JPMC, where technologists, around 500 people, they meet up.
and they spent 3 days together channelizing these energies, to something in innovation to create something. And there are different tracks there. It's called DevUp. I'm not sure if you have heard about it, but you may see some of the posts that I share on DevUp. And this was very recent, like last week, I attended this. And the idea there is there are different tracks like protect the firm or what AI, ML, or whatever. Like we spoke about quantum as well. There was one team which presented on quantum, and that was I was very much blinded to all these concepts, right? So that gave me some idea into quantum computing, one, and even for quantum key distributions, which is part of somewhere in security field also, right? Like how you have asymmetric or symmetric algorithms, Inscriptions. correct, correct. It was on similar lines how you can use quantum in that key distribution. So kind of very informative sessions, like in all these different tracks which were being held there, and gave us an opportunity to talk to our global leaders as well, like to talk to our CISO, like what do you think about couple of next things coming up for us. So definitely it was very exciting to meet those people, very inspiring at the same time, because all of them have been in the industry for quite some bit, right? And they have given their contributions. So it was very nice to absorb that content and now take it back to my team and build on top of that. So I think that's how I'll summarize the वहाँ kind of सारे conference. सिक्योरिटी इंथुजियास्ट मिलते हैं एक हाँ, पर्टिकुलर so प्लेस. DevUp में it was not just security, it was all people like from AI ML track also, from security as well. Like multiple different tracks डिफरेंट were there. डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस का मोटिव अलग रहता Correct, है. correct. But yeah, choose wisely which conference will add some substantial thing to your thing, right? Like because at the end of the day, you have to evaluate whether going into a conference will help you build on top of that or not. They say before this I was into software engineering, so those kind of conferences helped me somewhere or the other to join dots and uh, get back to my team that okay, maybe we can do this, maybe we can do that. Now that I'm in cybersecurity, so those conferences will help me get more information back to my team. So always choose wisely which conference will augment things to your bucket basically at the end of the day. सो आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते हो अपडेटेड रहने के लिए और लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से भी? Right. So for me, something which comes very naturally is अगर कोई मेरे साथ one-on-one conversation करे, like someone who is in the industry for a long time, and they talk to me about how things would work, back then. Let's say 30 years back, there was no Stack Overflow. How would you debug your problem? Like, how would you get answers to a couple of your questions, right? Kind of those things. Those interactions help me to understand certain nuances of this. And second, talking about the recent advancement. Like, let's say cloud security posture management. Now, this has been around for some time, right? CSPM or CDR, like cloud detection response. Like, how do you reduce the time of finding out that there is a some vulnerability in cloud, right? All those things. So this is very inspiring. Like when you talk to people 101, and also there are resources available. Like I think there's a newsletter which comes to my mailbox. It's called TechCrunch. I don't know if anyone follows that, but that also has very insightful conversations about some things in cybersecurity, right? Like like I think recently I saw some talks about something within AI, like how AI and cybersecurity, we are trying to marry these fields together and have something more concrete out of how we can use AI for cybersecurity. So I think it's very important to keep yourself up to date, either by talking to people in the industry about this constantly. And when I say that, that also comes back to the point that you network with like-minded people and get to know about these things from them, right? And at the same, because the source of the information is correct now. आज की date में there is so much available on internet. You don't know what is correct and what is not, right? So coming from people who are in your network, coming from a people who you trust, that definitely helps build on top of things for you, right? तो वो है, and I think TechCrunch, I don't follow a lot of these digests
to be honest with you, but मेरे ख्याल से talking to people helps me keep in touch more often than not. So that is my take on that topic. लाइक किसी से बात करके भी आप चीज़ें सीख सकते हो, रादर देन आप Exactly. खुद सीखने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। Yep. Absolutely. So that learning curve जो आपका रहता है वो definitely reduce हो जाता है, but that doesn't stop there. Of course आपको वो pointers देते हैं डायरेक्शन में, then you get to research, अगर कुछ ऐसा है टॉपिक तो थोड़ा राइट रिसर्च। डायरेक्शन में आपको एग्जैक्टली। मेंटोरशिप राइट। मिल जाती है कि लाइक कैसे राइट। आप पढ़ो। सो राइट। रेज्यूमे कैसे बनाएं और उसमें अपने सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट कैसे शोकेस करें, और एज अ करेक्ट। हायरिंग मैनेजर या हायरिंग पर्सन आप कैसे देखते हो किसी को, रेज्यूमे कैसे इवेलुएट करते हो, और क्या क्या करेक्ट। पॉइंटर्स होने चाहिए एक रेज्यूमे में। राइट। सो सबसे पहली बात है कि एज वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट कि अलग प्रोफाइल्स हैं विद इन सिक्योरिटी ऑल्सो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। जब आपको एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन समझ आ गया तो आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो उस कंपनी में। अब आप देखो कि आप कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप ले सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में से, एंड इट कुड बी हॉबी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, जो आपने बिल्कुल कुछ रिसर्च पर्पस के लिए या कुछ आपने अपने से सोच के कर लिया हो। इट कुड बी इवन दैट, because the whole motive of you to apply for that job would be to find out your experience working on those things which your role is asking for. अगर आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से तो योर रेज्यूमे विल नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड, राइट। अब आज की डेट में क्या होता है कि देर आर वेज, अदर क्रिएटिव वेज ऑफ हाउ पीपल फील कि ये क्वांटिफाइबल है। लेट्स से क्लाउड सर्टिफिकेशन, और वो CompTIA प्लस कुछ ऐसी चीज़ें सर्टिफिकेट्स आर देयर। सो इफ़ यू डू दैट, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस इज इट right, बेस्ट। correct, correct. So people say that if you do those certifications, that adds value to your resume, right? So again, I would say for me, if you ask me in person, मेरे लिए ज़्यादा matter करता है hands-on experience than getting these certificates, right? But yeah, that is one reality that people may feel कि अगर ये बंदा certified है, if this person is certified, then it automatically says that they have expertise on some level for this particular skill. So it definitely adds. I'm not saying it will not help you, it will definitely help. But at the same time, please take that skill to another level by implementing it in some or the other hobby project, because that's the real learning, right? आप एज अ लाइक आपको अगर सर्टिफिकेशन ही करना हो तो लाइक वो बेस्ट इस केस में रहेगा कि आपको प्रोजेक्ट नहीं पता या आप अवेयर नहीं हो या आपको गाइड नहीं Exactly. हुए है कि लाइक मैं किस Yes. पाथवे को फॉलो करूं। तो Spot लाइक on. जैसे आपने Yes. सिक्योरिटी प्लस बोला है, मैं भी रिकमेंड करता हूँ मोस्टली लोगों को, आपको सिक्योरिटी प्लस में सब मिल जाता है, लाइक बेसिक नॉलेज जिस आपको चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप Correct. उसमें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की भी नॉलेज होती है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे आगे किस में जाना है, रादर देन आप कुछ भी कहीं का भी पढ़ते जाओ और आपको ये भी ना पता, सेटिस्फाई भी ना हो कि हाँ मुझे बेसिक सिक्योरिटी की नॉलेज है कि नहीं। Right, spot on, and that's the whole point, because certifications do not necessarily mean कि आपको वो चीज़ आ गई, because a lot of these are theoretical concepts, lot of these are like points for you. Like let's say cloud practitioner का certificate रहता है, उसमें एक specific section है which talks only about cost, राइट। तो उससे आप चीज़ ये तो डेफिनेटली ले सकते हो कि मुझे अब कॉस्ट ऑफ अ सर्विस मुझे पता है क्या है, कि विच वन इज एक्सपेंसिव विच वन इज नॉट, एंड इन विच सिनेरियो आई कैन यूज दैट वर्सेस दिस। तो वो चीज़ एक एनालिसिस जो होता है ना वो आप कर सकते हो, बट कैन यू टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल एंड नाउ टॉक अबाउट इट इन अ डिजाइन प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज द रियल लर्निंग। तो अगर आप वो चीज़ कर पा रहे हो तो इट इज़ गुड, विदाउट अ सर्टिफिकेशन ऑल्सो अगर आप वो कर पा रहे हो थ्रू एनी ऑफ योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, आई थिंक कीप डूइंग दैट, और कीप बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो लाइक दैट। तो जैसे एक स्किल सेक्शन अगर आप डालेंगे, लेट्स से अगर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं ऑन काली लिनक्स या फिर यूजिंग टूल्स लाइक मेडुसा, जो पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए यूज होता है, तो आई कैन हाईलाइट दोज थिंग्स कि मैंने ये सब कर रखा है, राइट। तो काइंड ऑफ दोज थिंग्स। तो आई थिंक वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उसमें कि अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन समझ जाएं एक बार कौन सा रोल है वो समझ जाएं,
फिर बेस्ड ऑन दैट यू हाईलाइट योर प्रोजेक्ट्स। बिकॉज कभी कभी क्या रहता है कि आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा एंड तीन चार चीजें आपने उसमें कर रखी होंगी, तो highlighting the project which really reflects what job description is saying becomes important at that time। तो आपको वो चीजें आपको उभार के लानी है अपने प्रोजेक्ट की। एट द सेम टाइम रिमेंबर पुट इम्पैक्ट मेट्रिक्स। डोंट जस्ट राइट कि आपने इतने इंसिडेंट्स रिजॉल्व किया, आपने इतना एसओपीज बनाए। यू हैव टू से, ये आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, सो व्हाट, राइट? आपने ये किया, सो व्हाट? बिकॉज एज द हायरिंग मैनेजर, एज अ रिक्रूटर, लेट्स से अगर ह्यूमंस भी देख रहे हैं रेज्यूमेस को, हाउ विल आई अप्रिशिएट कि व्हाट यू डिड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या व्हाट यू डिड फॉर योर टीम? मेरे पास तो वो विजिबिलिटी है ही नहीं। आप मुझे बोल रहे हो कि आपने 20 एसओपी बनाए, मगर अगर आप उसको परसेंटेज में दिखाओ कि आपने 80% एफिशिएंट किया अपना, जो भी वर्कलोड था, दैट इज मच बेटर, दैट इज अ बेटर मेट्रिक टू प्रोजेक्ट दैन जस्ट सेइंग कि मैंने 20 एसओपीज बनाए around a particular thing। So think about it, like, because sometimes people go into this number game also, like I see there's a lot of knowledge to people today कि numbers दिखाने हैं, बट उस गेम में ना दे फॉरगेट कि कौन सा नंबर दिखाना है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्पैक्ट यू हैड विया दैट प्रोजेक्ट इन दैट गिवन स्पेस। तो वो जब तक क्लियरली आप नहीं आर्टिकुलेट कर पाओगे, तो योर रेज्यूमे विल नॉट स्टैंड आउट। सो लाइक सर्टिफिकेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में? दैट इज ट्रू, यस। एंड बहुत सारे जो जॉब प्रोफाइल्स आप देखोगे उसमें रिक्वायरमेंट रहती है, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड रिक्वायरमेंट, जहाँ की दे स्पेसिफाई कि ये चीज़ें तो होनी होनी चाहिए। तो देयर इज नो अदर वे, राइट? यू हैव टू हैव सर्टिफिकेशंस अराउंड दोज लाइंस। बट कहीं बहुत सारी चीज़ों में दे डोंट स्पेसिफाई द सर्टिफिकेट्स, वहाँ प्रेफरेंस पे में लिख आपका देते हैं काम। प्रिफर्ड हाँ, दिस एग्जैक्टली, इट्स प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन बट नॉट रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली। रिक्वायर्ड, यस। एग्जैक्टली, या सो सो वे दोज आप आउट। आपने कोई सर्टिफिकेशन करे? मैंने बहुत कम किए हैं सर्टिफिकेशंस। मैंने एक क्लाउड प्रैक्टिशनर का शायद किया होगा, AWS का एक आता है, वो मैंने करा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक लिंक्डइन में वो एक असेसमेंट रहता है ऑन अ स्किल, वो मैंने एक बार बस देखने के लिए कि हाउ दो असेसमेंट्स वर्क, मैंने वो कर रखा है। तो दैट इज काइंड ऑफ गुड बिकॉज इट गिव्स यू अबिलिटी टू शोकेस कि ये मेरे मेजर स्किल्स हैं, और वो आपके ना प्रोफाइल में ऊपर आ जाते हैं। तो दिस गोज बैक टू योर प्रोफाइल बिल्डिंग, कि अगर आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, दिस वेरी लिमिटेड टाइम। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज इन US अप्लाइंग फॉर जॉब। तो there is always a timer which is running on their head कि yeah, after graduation within some days you have to get a job। So people don't know where to focus. Should they focus on networking? Should they focus on building a LinkedIn profile? Should they focus on resume? कहाँ focus करें, वो थोड़ा वहाँ पे ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो माई सजेशन देयर वुड बी, डिवाइड योर टाइम। इफ यू रियली थिंक आपको लिंक्डइन पे भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो थिंक अबाउट इट एज कि कीप सम टाइम फॉर इट, डोंट गो बियॉन्ड दैट। बिकॉज अगर आप वो टाइम बॉक्स नहीं करोगे इवेंट को, इट विल जस्ट कंज्यूम एवरीथिंग फ्रॉम यू, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3-4 घंटा लिंक्डइन पे बस स्क्रॉल करते रह गए और एट द एंड ऑफ द डे यू डिडंट हैव एन आउटकम। सो ऑलवेज डिफाइन व्हाट यू वांट टू डू। इट्स लाइक हाउ इन टेक्निकल टर्म्स वी से कि एक ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको, उसका कोई की रिजल्ट होना चाहिए, एंड देन वर्क बैकवर्ड्स टू अचीव दैट की रिजल्ट। तो चाहे वो आपको एक एक घंटा स्पेंड करना पड़े ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 वीक, यू विल बी देयर। चाहे आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, चाहे आपको असेसमेंट्स कुछ करने हैं, आप वैसे टाइम आउट कर लो अपना वो पूरा जो जर्नी है, बट सो दैट इज मोर हेल्पफुल। सो हाँ, लास्ट क्वेश्चन, आप साइबर सिक्योरिटी का एक रोड मैप आप बता सकें, और जो इस फील्ड में नहीं है और जो इस फील्ड में आना चाहता है उसके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहें? या डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात है, जो फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर साइंस के, वो आई थिंक सब लोग समझने चाहिए सही से। फंडामेंटल्स में क्या आते हैं? अगर किसी फंडामेंटल्स में कौन कौन से टॉपिक, लाइक नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग यस, सिस्टम्स? यस, स्पॉट ऑन, यू आर स्पॉट ऑन। नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेसेस हो गए, वेब हो गया। बिकॉज जब तक आप ये अलग अलग चीज़ें नहीं समझोगे अच्छे से, कंपाइलर भी हो गया फॉर दैट मैटर, तब तक
क्या सिक्योर, कौन सा वो एक dimension होगा ऑफ सिक्योरिटी विच यू कैन फोकस ऑन, बिकॉज एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दीज थिंग्स, राइट? ये पिलर्स हैं आपके फंडामेंटल्स। तो मेक श्योर जो फाउंडेशन है दैट इज प्रिटी स्ट्रांग, एंड देन यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। आप तो पूरा एक टावर बना सकते हो इसके ऊपर, राइट? अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। सो दैट इज द थिंग विच आई वुड रियली encourage people to do, because आज की डेट में आई हैव सीन folks they get very much attracted to things like, oh, AI. It's good that you should be aware of those things, but at the same time first understand the basics, तब जाके आप एआई को भी अप्रिशिएट करोगे ना। तो वो वही बात आ जाती है। बट एट द सेम टाइम गिवन दिस एज अ प्रेमिस, ऑफ कोर्स आपको एक जो नीश स्किल सेट है वो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को जनरली व्हेन आई मेंटर पीपल, कि फाइंड आउट लाइक टॉप 20 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, राइट? और टॉप 10 वर्ड्स, वट एवर दैट इज, व्हेन यू थिंक अबाउट द वर्ड साइबर सिक्योरिटी, वो क्या वर्ड्स हैं जो आपको याद आते हैं? तो based on that, you can create some word cloud which will help you understand where your inclination is. Is it in GRC? Is it in audit? Is it in cloud? Is it somewhere else? Because क्या होता है ना, there is a bias कि हमारे थिंकिंग जो होती है कि साइबर सिक्योरिटी ये चीज़ है, तो वो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे खुद से? उसके लिए अगर आप यही एक एक्टिविटी कर दोगे, दैट विल गिव यू विजिबिलिटी इनटू व्हाट यू आर थिंकिंग एंड विच फील्ड यू आर मोर इंटरेस्टेड। जैसे अगर मैक्सिमम वर्ड्स एक फील्ड में आ रहे हैं आपके, तो दैट कुड बी योर गो टू फील्ड, राइट? सो ओके। या लाइक मोस्टली मेरे हिसाब से लोग एआई को एज अ सर्विस बेस्ड में अभी जान रहे हैं, डेवलपिंग कैसे करेक्ट। डेवलप्ड होता है उसको, फिर एआई सिक्योरिटी कैसे इन्वॉल्व हो रही है, उस टर्म्स में अभी इतना अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है, क्योंकि आप जो भी चीज़ देखेंगे एआई की, दैट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन एनहांसिंग डेवलपर एक्सपीरियंस, कि हम वो टूल कैसे यूज करें कि हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाए, राइट? तो द कट टू इज कि आप सिक्योरिटी एंगल्स भी जानना समझें, राइट? बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो मैंने ये एक्टिविटी बताई, दिस जस्ट हेल्प्स पीपल ब्रॉडर सेंस में get a direction within cybersecurity, not just in AI, in any field within cybersecurity, कि आप app secure जाना चाहते हैं या फिर DevSecOps हो गया, whatever that is. So kind of these things are clear when you little एज अ bit, लॉन्ग रन में भी पिवट भी होता है yeah, लोगों के, ऐसा नहीं कि होते आपने हैं, कोई कोई yes, फिक्स कर लिया आप उसी में डेप्थ में जा रहे हो, बोरिंग भी लगता है। आप पिवट भी कर सकते हो, इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एआई एमएल आ absolutely. गई है। यस, और उसमें जो चीज़ हेल्प करती है दैट इज़ योर क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस हो, जैसे मेरे साथ तो मेजर वही हुआ ना कि जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, आई वाज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट ये थ्रेट मॉडलिंग कैसे चल रही है, व्हाट आर दीज थ्रेट एक्टर्स, लाइक कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही हैं। एंड इवेंचुअली आई लैंडेड अप समवेयर वेयर आई कैन बेसिकली से मेरे पास तो क्लाउड का नॉलेज था, सिक्योरिटी थोड़ा बहुत तो मैंने अंडरग्रेड मास्टर्स बहुत हैंड्स ऑन करा था मैंने, so I can definitely go into cloud security. So that is where you can pivot once you show कि you are curious in those fields, once you show कि यार ये चीज़ें तो मेरे को समझ में आती हैं अब। So that is really helpful in general. थैंक यू सो मच शिवम, आपने इतना टाइम दिया और इतना सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ। थैंक यू सो मच। Thank you, appreciate. Yeah, I really like to be in this session and hope बहुत लोग इससे कुछ सीख सकें, and see you next time. थैंक यू सो मच। तो आई होप आप सबको आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें, उनकी भी नॉलेज इन्हेंस होगी, उनको भी हेल्प मिलेगी। और हम मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक दे रखा है, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और मेरे से 1-to-1 सेशन करने के लिए टॉपमेट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।